other in a way where we speak about the existing COVID-19 situation and pertaining to women's health. So I would also like to introduce that we have a number of people who've joined us, not only domestically, that is from India, but also all over the world. In fact, we have our guest today, Dr. Deepti Jaiswal, who's joining us from the United Kingdom. And we have our very esteemed audience joining us from Mauritius. We have Jenny Patel-ji, Rashri-ji, who's joined us from Mauritius. And we extend a heartfelt welcome to her and all the many guests who are joining us from different cities in India for this special webinar on COVID-19 and women's health. I would also like to mention that for today's webinar, it is being organized by the Uttar Pradesh Development Forum. Our co-organizers and also our technical platform supporters are SmartGov Foundation. Our co-organizers for today are the Satya Micro Capital Limited and SIMA, that is Small Industries Manufacturers Association, Smile Spread from Lucknow, which is working unreservedly on women's issues and children's issues, and also Saraswati Group of Colleges, who are again part of our co-organizers. We have our official time for starting has just ticked in. We're starting at 12:30. I would also like to introduce my co-hosts we are three people who are going to be co-hosting this entire session. So there is Mrs. Shubhra Singh and there is Mrs. Pooja Jain, who are going to be joining us, and myself. My name is Pragya, and we three welcome you on behalf of the Development Forum for this very exclusive webinar on COVID-19 and women's health. I'm hoping that all our guests are joining us from various places and they are logged in. There are no technical glitches right now. Everybody can hear us and can view us well. So now in the very beginning, I would like to introduce our topic for today. Now, why COVID-19 and women's health? Importantly, now in this entire health fiasco that we are facing at the moment, there's COVID-19. We're looking at how the health infrastructure in India has sort of come to its knees. The pressure is on doctors, the pressure is on health workers, the pressure is also on women, most importantly, because we know that women who form a very integral part of the family unit, who form a very integral part of our society, are mostly burdened. हम महिलाएं जो घर में रहती हैं, हम महिलाएं जिन्हें परिवार की देखरेख भी करनी होती है, हम अपनी हेल्थ को कई बार जो है पीछे छोड़ देते हैं, कई बार उसके बारे में नहीं सोचते हैं, बिकॉज हमें और लोगों का ध्यान रखना है, अपने बच्चों का ध्यान रखना है, घर में और हमारे बुजुर्ग हैं जिनका ध्यान रखना है। लेकिन बहुत जरूरी है कि इस दौरान हम अपने आप को इग्नोर ना करें, हम अपनी हेल्थ को भी एक टॉप प्रायोरिटी दें। और इसीलिए आज का ये स्पेशल सेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स इंपॉर्टेंट टू डिस्कस अबाउट हाउ women are affected psychologically, physiologically during this entire fiasco of the COVID-19 pandemic that is on. And for that very reason, joining us today is our very special guest of honor, Dr. Deepti Jaiswal. In fact, she has an immense kind of interest area in gynecology and obstetrics, and she is presently in the United Kingdom. She has been practicing on various facets of her area of expertise, and she will be in fact shedding light on various issues that involve women. बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिनको ऐसे सवाल हैं कि अगर वो इस वक्त गर्भवती हैं तो उनको कोविड किस तरह से उनको किस तरह से कोविड की इस पैंडेमिक को हैंडल करना चाहिए, जो महामारी है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जिन्होंने इस वक्त जिनको हैव जस्ट गिवन बर्थ, जिन्होंने ऑलरेडी जिनके बच्चे हैं, छोटे हैं, उनको किस तरह से वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक रहना चाहिए, किन हालातों में वैक्सीनेशन करें,
कब ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं विमेन जो इस वक्त जो है कि ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हैं, तो उनको किस तरह के प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ऐसे बहुत से सवाल हैं, ये एक मल्टी फेसेटेड टॉपिक है, जिस इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको हम एक तरह से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करें। और इसीलिए आज हम देख पा रहे हैं कि इवन जो हमारी ऑडियंसेस हैं वो सिर्फ इंडिया को लिमिटेड नहीं है, बल्कि और हर जगह से यहाँ आए हैं। सो दैट एक इम्पोर्टेंट इसका एक और एस्पेक्ट है जो कल इनफैक्ट मेरे को होस्ट ने ये हमें आइडिया दिया कि आज हम जो भी बात करते हैं आपस में, हम इस बात को जरूर ध्यान में रखें कि आज हम क्योंकि इन कंप्यूटर से, इन मोबाइल से एक्सेस कर पा रहे हैं, हमें एक एक्सेस है, तो हम इस बात को जान पा रहे हैं कि जो भी आज हमें डॉक्टर दीप्ति जिन भी चीजों के बारे में हमसे बात करेंगी, एक हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन इसको हम किस तरह से कम्युनिटी सर्विस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो वो इसी तरह से कि हम आगे जिन लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ इतना access nahi hai, those people who have not got any technological access, we talking about those people on the margins of our society, our maids or other labor workers who are outside, who are on daily wage earnings. We must, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि आज हम जो भी यहाँ से सीख के जा रहे हैं, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उन तक जरूर पहुंचाएं। और इसी तरह से ये एक चेन रिएक्शन सा शुरू हो जाएगा, जहां पे लोग एक दूसरे के साथ विचार विमर्श करेंगे, इन बातों को शेयर करेंगे। और जितना ज्ञान जो है शेयर किया जाए, द मोर दैट नॉलेज इज शेयर, इट ओनली tends to expand and benefit the society at large, because we must remember that we are all of it together in this. हम सब आज इस महामारी के शिकार हैं, और इसीलिए हमें जितना हो सके इस नॉलेज को स्प्रेड करना चाहिए। So in the very beginning, I would request Dr. Deepti to share a few introductory remarks, and then I would head towards Ms. Pooja Jain, who will be taking the first session of the webinar. So Dr. Deepti Gupta, I would request you to please speak a few words. Thank you, Pragya. Thank you, UPDF. And thank you, Pankaj, for giving me this opportunity, because women's health is very close to my heart. It's very close because I consider women not only different, they are special. Women are special and we are a bit different. Our physiology is a bit different and it is getting more special and it needs a more care when women get pregnant. So Pragya, your start was amazing because you have raised few points which I would like to highlight also during my talk, especially the mental health issue, the women during pregnancy, during lactation, vaccination issue, and very important thing, we don't talk much. We don't talk. So we need to talk about ourselves and we need to raise the awareness about women's health to the other. Like we are friend. हम कह सकते हैं हम सब सखियां हैं, सहेलियां हैं. तो जैसे सखियां और सहेलियां होती हैं, उस तरीके से हम आज जो सुन रहे हैं वो हम अपनी हर सखी और सहेली को बताएं जो भी हमने आज सुना, ताकि वो भी जाने. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डोंट डिस्कस. स्टिल एक एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टिल एक हेजिटेंसी है औरत के अंदर कि वो बात नहीं करती है. वो सब कुछ करती है, वो पूरे परिवार के लिए करती है, पर वो अपने लिए नहीं सोचती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट दैट, स्पेशली इन द पैंडेमिक, because they are the 50% of the population and they carry the next generation. They are the one who are carrying the next generation. So it's very very important कि उनकी हेल्थ का काफी ध्यान रखा जाए. And they are different, they are special. So thank you, Pragya. We will go through it and I will try to help in whatever the knowledge I have, whatever I can help in giving the answer. I will try my best to help here. Thank you so much, Dr. Deepti. We are very honored to have you, and so that to have you get your experience and knowledge shared on this wide platform. People from not only India, but around the world have joined us here on this webinar. And I hope that this is an enriching experience. सभी लोग आज कुछ ना कुछ सीख कर, कुछ नया सीख कर ही जाएंगे. तो इसी के साथ अब हम शुरुआत करते हैं इस वेबिनार की. और सबसे पहले जिस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, वो इज इट्स ऑल अबाउट प्रेगनेंसी.
and then we head into breastfeeding and then vaccination. So ये जो पहला session है उसको moderation करने वाली है Mrs. Pooja Jain. So I welcome her and let's begin this. Namaskar everyone. Since Pragya has already taken my name so many times, so I would not repeat. Very welcome, and it's a privilege to have you, Dr. Deepti, here in the forum. You are a specialist, so and I'm very sure that now we will be educated after this, and we will be eligible to educate others. So I welcome all the mothers, would-be mothers, already mothers. Mother अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है. I am an immunologist. तो सबसे पहले मैं जब anytime when I go for a matchmaking for a male and a female, a boy and a girl, तो मेरी एक ही लाइन होती है कि एक हाउस होता है, there is a house a girl should carry because girl productivity का कारक है. It is girl who is responsible to extend the family, to give a name, a new generation. तो girl productivity का कारण है, इसलिए girl is very very important. गर्ल के पास वो सारे न्यूमरोलॉजिकल नंबर्स होने चाहिए. तो इमेजिन हाउ पावरफुल अ गर्ल इज एंड हाउ पावरफुल अ मदर इज. तो मुझे पता है कि आज दीप्ति जी जो है हमें मेरे बहुत सारे डाउट्स हैं पर्सनल जो क्लियर हो जाएंगे, विच आई थिंक आर वेरी वेरी कॉमन, बहुत सी लेडीज को रहेंगे. आई विल विदाउट going or wasting more time, I would ask a very basic question. What is the main advice that you would give first shot? A basic advice to the pregnant woman, those who are already carrying. Deepti ji. So your question, okay, so is it not related with the COVID, right? No, it is. It is. In this pandemic, if somebody is carrying, what is the first basic advice you would give us so that we will also remember and we can suggest? So first advice is don't get panic. Okay, the most important thing is that don't get panic because the recovery rate of this disease is higher than the mortality. Okay, that's the most important and much higher than the mortality. The phobia of COVID is more killing than the disease. जो एक डर है ना कोविड का कि कोविड हो गया और मर जाएंगे, वो सबसे ज्यादा खराब है. लेकिन साथ में हमें ये भी याद रखना है कि हम केयरलेस भी ना हो. So the social distancing and the hygiene, that is most important in this current pandemic, because any woman, either she is pregnant, she is having a child, or she is planning to get pregnant, any, or your mother, menopause ladies and all these things, हमारी माँ बहनें सखी सहेलियां सब, the most important thing is that you have to be very careful, but you should not be panic, because ये है और कोविड है और कोविड रहेगा. इट विल बी द सिमिलर लाइक द फ्लू विच वाज लाइक स्पेनिश फ्लू जो 1918 में आया था. आज भी हम थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं फ्लू देखते हैं, वो नहीं गया. सिमिलरली ये कोविड भी जो है ये इसी तरह मोस्ट लाइकली रहेगा. वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वी हैव टू, एंड एज अ विमेन वी नीड टू ourselves and हमारी फैमिली, हम सबको टीच करना है द सोशल हाइजीन, social distancing, the mask, compulsory mask, in spite, even if you are at home, you have to, because आपके घर वाले बाहर जा रहे, they can bring us, they can bring inside the house. So you have to maintain that thing कि आपको teach करना उन्हें. You have to be strong in this pandemic to so that हर इंसान घर में, आप घर चला रही हैं, आप घर में सबको सिखाएं कि social distancing, mask and hand hygiene should be there inside the house to reduce the incidence of this pandemic, and don't get panic. So that's the first advice from your side. Stop getting panic. Stop getting careful. Correct. I got it. And what if I develop a symptoms of COVID-19 during pregnancy? What do I do then? Immediately. Again, go to that. Don't get panic. Okay, the first thing. Second thing is very important. Don't start medication without any doctor's advice, because the management of COVID in pregnancy or anyhow is symptom based. It is not the test based. It is not that you got the COVID positive, so I have to treat you. पूरा का पूरा जो मैनेजमेंट है कोविड का वो सिम्टम बेस्ड है. Even if someone has a symptom and they don't have the test, we have to treat the patient as a COVID positive.
So I'm not treating the lab. I'm treating a human being. So the most important is the symptom phase. So the monitor start monitoring yourself. First of all, self-isolate yourself. Don't start cooking and cleaning. Don't do the household work. Keep your house very well ventilated. It is very important because the air need to be get changed in the house because you have to look after the other member. Keep yourself self-isolated with the window open of that room. Monitor your symptom. The women who are pregnant, they have the same risk as the other people, like the male part. However, if the woman is in the third trimester, her risk of getting deteriorating is a bit higher because she is a bit different. उसके फिजियोलॉजी जो है, उसका जो लंग कैपेसिटी जो है, और ये डिजीज हम भी जानते हैं कि लंग को अफेक्ट करती है, वो चेंज हो चुकी होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. दूसरी बात ये हमें और जानना है कि प्रेगनेंसी अकेली सिर्फ प्रेगनेंसी नहीं होती है, वो कुछ चीज साथ में लेके आती है. लाइक शी मे हैव सम pre-existing condition like diabetes, hypertension, or it may develop during the pregnancy like diabetes, hypertension. So she has to manage both the things. It's not a one person, it's a female with a child. So management should depend. No, so first thing, don't get panic. Self-isolation, social distancing, hygiene. Continue your pregnancy care, what it is. Don't do any self-medication, self-testing like HRCT, which is very important. Don't do it in pregnancy because not all medication is advisable during pregnancy. So you have to take advice from a healthcare professional. All right, all right. So if I have probably have not developed the symptoms, but I feel that I was exposed to that surrounding, and I have that anxiety. I feel that I might catch it. So in that case, also I should go for a test, or I should just stop panicking and sit down, relax, and wait for it. I would say you would sit down at home and relax. The reason is that because in the current situation, the way the testing is that the test center is looking like a center of a pandemic, Yeah. So you have to be very careful regarding that because even I mentioned I am not gonna treat the lab report. I have to treat a woman with the symptom. Okay, if someone's lab report is positive but no symptom, we are not gonna do anything. That's it. It's a big chunk of the 30% of the population. If someone has a lab report negative but the symptom suggestive of a COVID positive, I have to treat that as a COVID positive. Making sense? So the most important, self-isolate if you are exposed, monitor yourself. You should know the symptom of the COVID. It can be unusual, it can be the common. The common one is the cough, cold, fever, sore throat, sneezing, that all. Other loss of taste, loss of smell. Loss of taste and loss of smell are very specific. Specific means अगर ये है तो कोई टेस्ट की जरूरत ही नहीं है. You are COVID positive. You are. Okay. But the good thing is that if this is the only symptom and there is no sore throat, no headache, no fever, your likelihood of getting severe case is very less. Okay, that's very important. If someone has only loss of taste and loss of smell with no other symptom, the likelihood of getting a severe infection is very less. Okay, however, we cannot ignore it also. The second thing, another unusual symptom you need to keep in mind if you are exposed, like headache, diarrhea, constipation, prolonged constipation, which is anyhow common in the pregnancy. Okay, prolonged constipation, diarrhea, unusual bowel movement, headache, vomiting, keep an eye. If you start developing, get yourself tested because tested, why needed? Test is needed because your healthcare professional, your doctor would need it for the admission. She would ask you. So that is the one thing. And if you develop the symptom, the only treatment is for you at the beginning is paracetamol. Keep the two things at your house, thermometer and pulse oximeter. Two things only.
thermometer and pulse ox, that's the your biggest weapon, because तुम्हें monitor करना है अपने आप को. ये दो चीज संभाल के रखो. If you have a diabetes and hypertension, I will come to you at separately. I'll come to that point because that is a high risk group. That women is a high risk group. So I'll talk to about that separately. Okay. So another question, Dr. Deepti, is see, I've been seeing domestic helpers complaining with the stomach upset, constipation, or diarrhea, but that's the only thing they are having. This is not related to pregnancy here, but I have a doubt for women, those who are having only diarrhea or constipation or prolonged one. So, but that's the only thing. So, is it also a symptom of COVID, or it's just a normal, regular problem? It could be, and very strange. That's why I said in the beginning, the women are very special, and in the pregnancy, they are becoming more special, right? So their symptoms are also special because everything changed, because the whole nature tried to, the whole body work toward that child. It's not work for the female at all. The moment अब जैसे ही औरत प्रेग्नेंट होती है ना, वो बच्चा ना सेल्फिश हो जाता है. पूरी बॉडी और पूरी कायनात जो है ना उसके तरफ हो जाती है. ओके, सो द सेम टाइम, उसी टाइम पे उसका जो जीआई ट्रैक्ट है वो भी थोड़ा अजीब सा एक्ट करने लगता है. शी स्टार्ट हैविंग द सिम्पटम ऑफ कॉन्स्टिपेशन, व्हिच इज वेरी कॉमन इन प्रेगनेंसी. नाउ द कोविड हैज दिस काइंड ऑफ अ सिम्पटम आल्सो. It's very unusual, and in that case it could be possible that the RT-PCR may come as a negative. Okay, that is possible because of the way the strains is changing, the mutation is starting. And it is very I would say that it is not uncommon to get this kind of a symptom. So if you have that symptom, just do one thing: self isolate and monitor. I am not going to treat you. We are not treating you. We just want to monitor you. That's it. We will treat once needed. Monitoring, self isolation. That's it. Monitoring with the pulse rate and the fever, right? Yeah, pulse oximeter and the fever, temperature, two things I need. That's it. And this isolation involves opening a window, because few people have this. Very important it is. Yeah, go ahead. Yeah, opening a window is very much in the isolation, is it? Yeah, the reason is that like 2-3 months, till 2-3 months back, we were discussing, and we were the whole research was just pointing toward that it is a droplet infection. However, the recent Lancet, the very famous medical journal, has already, so जो recent journal है उसने already ये कह दिया है कि ये airborne है, right? And if it is airborne, we need to that हमारे घर का हवा जो है वो change होना चाहिए. Otherwise क्या होगा कि वो घर में घूमता रहेगा. And there are some vulnerable could be at your home. जैसे parents हैं, बच्चे हैं, जो कि एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, तो घर की हवा को बदलना है. एंड एनी फ्लू इन्फेक्शन जो है ना, अगर हम हिस्ट्री में जाएं और हम पिछले फ्लू से अगर हम कुछ लेसन लर्न करें, तो हम ये कह सकते हैं जब उनका सन से एक्सपोजर हुआ था तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई थी. तो इसीलिए हम इसको भी एडवाइस करते हैं कि जो वेल वेंटिलेटेड घर होते हैं वहां पे इन्फेक्शन थोड़ा कम होता है, वेल वेंटिलेटेड में. So that's why it is very important. It's like जैसे अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी डिजीज में जो एयरबॉर्न है, ट्यूबरक्लोसिस. सो ट्यूबरक्लोसिस उस घर में कम होती है जहां वेंटिलेशन ज्यादा होता है. सिमिलरली हम इसमें भी कह सकते हैं वेल वेंटिलेटेड हाउस. तो अगर आप सेल्फ आइसोलेटेड है, आपके विंडोज खुले होने चाहिए, आपकी घर की हवा बदलती रहे. डोंट जस्ट टेक दैट थिंग. That's a very good point. And now, if supposing I had this anxiety, I went for a test and I'm positive, then what is the impact now? Don't get panic. Not to be panic. It's very common. You will get. I have seen, people they fainted just the moment they have seen report देखा और faint हो गए. तो ये भी है, और ये बहुत डरावनी सी बीमारी एक्चुअली. हमको ये लगता है कि बस हो गया तो बस मर गए. नहीं. बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच जाएंगे. बट अगेन द पल्स ऑक्सीमीटर एंड द थर्मामीटर इज द थिंग विच यू नीड नाउ. एंड अब आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई. अब आपको अपना ध्यान रखना है, आपको अपना भी ध्यान रखना है, आपको अपने साथ घर वालों का भी ध्यान रखना है. प्लीज किचन में ना जाए, प्लीज कुकिंग ना करें, पर मूव करते रहे. खासकर प्रेग्नेंट लेडीज और जो 6 वीक्स पोस्टपार्टम यानी लैक्टेटिंग मदर हैं, वो भी मूव करते रहे, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी में ना ब्लड थोड़ा थिक हो जाता है
और ये कोविड भी थोड़ा सा गंदा सा है, ये भी क्या करता है, ब्लड को थोड़ा स्टिकी कर देता है। तो इसलिए आप पानी पीते रहें, वेल हाइड्रेटेड, and move on in that room, but self isolate and monitor yourself. I would love अगर कोई एक चार्ट बना ले, वो चार्ट बना ले जिस चार्ट में वो एक टेम्परेचर डाल दे। तो पहले सबसे पहले तारीख डाले कि ये मेरा डे 1 है, बिकॉज जो मैनेजमेंट है वो दिन के हिसाब से भी होता है, उसमें इसका भी इंपॉर्टेंट है कि वो किस दिन से सिम्टम शुरू हुए। तो पहले अपनी तारीख डाल ले कौन सा डे है, फिर उसके बाद अपना टेम्परेचर डाल दे, पल्स डाल ले, ऑक्सीजन डाल दे, ये चीजें डाल ले और उसको टाइम डाल दे, और टाइम से उसको 4-4 घंटे पे मॉनिटर करने शुरू करे, ताकि एक पैटर्न पता चले कि उसका पैटर्न क्या है। तो इसलिए इसको एक पेपर बेस्ड करें, चार्ट बेस्ड करें, इट इज वेरी हेल्पफुल ऑलवेज। Okay, okay. And also, if a pregnant woman catches only a normal cough and regular cough and cold, also she needs to watch herself and isolate for few days. Is it even for a regular cough and cold? Yeah, the reason is that because in the current scenario, it's a very good point, Pooja, you have mentioned, because nowadays we forgot rest of the disease ना, हमारे दिमाग में कुछ आते ही नहीं, हम सोचते सब कुछ कोविड ही हो गया है, तो बहुत Yeah. हो गया है। तो लेकिन अगर नॉर्मल कफ और कोल्ड भी है ना, तो भी आपको मान के तो अभी चलना है, क्योंकि इसको तो रूल आउट करना ही करना है। तो इसलिए आप उस दूसरा कफ एंड कोल्ड है तो उसके लिए भी कोई मेडिसिन तो नहीं है। एंटीबायोटिक का खासकर इंडिया में जो एक मैं बोलूंगी कि बहुत ही गलत होता है कि एंटीबायोटिक मिसयूज बहुत ज्यादा होता है। एंटीबायोटिक का मतलब होता है कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो होता है ना वो, और ये जो कॉमन कोल्ड एंड कफ है या कोविड, ये वायरल इन्फेक्शन है, इसके अगेंस्ट ना एंटीवायरल होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी फ्लू के लिए कोई भी है बनी नहीं अभी तक के, कुछ इफेक्ट करती नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि आप ना सिर्फ पैरासिटामोल अपने पास रखें, आपके लिए सिर्फ पैरासिटामोल और हाइड्रेशन एंड विटामिन सी, विटामिन डी, ये चीजें हैं, और बस मॉनिटर करें, आप सिर्फ मॉनिटर करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपको दवा की जरूरत नहीं है। फ्लू को चाहे वो नॉर्मल फ्लू हो या नॉर्मल कोल्ड एंड कफ हो, वो अपने आप में यूजुअली रिजॉल्व हो जाता है, 3-4 दिन में हो जाएगा। लेकिन अगर आपका रिजॉल्व भी हो गया इन करंट कोविड, कंसीडर योरसेल्फ एज अ कोविड इफ यू हैव नॉट गेट टेस्टेड, बिकॉज आपको पता नहीं है कि आप भले ही ठीक हो जाए 5 दिन बाद, जो कि इसका यूजुअली साइकिल ब्रेक का दिन होता है, 5 दिन बाद, तो आप ये फैला सकती हैं अभी। इसलिए आप अपने आप को मान के, जस्ट फॉर द अदर सेफ्टी, कीप योरसेल्फ सेल्फ आइसोलेटेड, बट डोंट बी बेड रिडन। ओके, बेड रेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्पेशली इन प्रेगनेंसी, नो बेड रेस्ट। And this is for newlywed or those who are waiting for second child. Do you suggest plan for baby this time, this whole period? Do you suggest to have it? Okay, so it's a choice, it's basically choice. So I would suggest in that situation that if they are not vaccinated, so first they should get vaccinated, the most important thing. Okay, तो सबसे पहली बात तो है कि if they are planning, so they should get vaccinated, ताकि एक कम से कम ये तो सुकून रहे कि अगर इन्फेक्शन हुआ तो थोड़ा सा कम होगा, ऐसा नहीं कि इन्फेक्शन नहीं होगा, पर थोड़ा कम होगा। That can give them the time to, maybe we just cross the peak and we can go ahead. If they have a stress, because now the two factors is there, one, एक तो ये है कि यार हमें बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, उसका स्ट्रेस। दूसरा, कोविड में हम बच्चा करें, बच्चा करें, बच्चा करें, तो उसका क्या होगा। तो ये स्ट्रेस, दो स्ट्रेस साथ में चलते हैं। तो बेसिकली इट्स द कपल चॉइस विच स्ट्रेस दे कैन मैनेज, यू नो। अगर उनको लगता है कि नहीं हम तब करेंगे जब ये चीजें सेटल हो जाए, fair enough, they can go ahead. If they are thinking no, we can maintain the social distancing, we can follow the hand hygiene and mask and can go ahead with the for हमारे consumption के लिए, they can go ahead, because चीजें एकदम रुकती नहीं है। Here as a fertility specialist here in the UK, we didn't stop, you know, हमने रोका नहीं है। We are keep on doing the fertility services. सिर्फ 1 महीने के लिए रुकी थी, and which increases a lot of mental stress to the couple, especially you know the, because fertility में क्या होता है ना, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, तो काफी ज्यादा उनको स्ट्रेस होने लगा था। तो we start, but we have given them advice that you need to understand that after that the whole 9 month you need to be very careful. So they have to balance between all these things, what they want, how much they can cope up. Yeah.
So thank you so much for washing off so many myths out of the mind. And as per me, I mean, having a pregnancy this period is should be completely ignored. Don't plan and all that. So I think, like me, there were many, and they can spread, the fact against this myth. Yeah. Thank you very much, Deepti ji, and I think Pragya, you can take forward next. Yes, thank you, Pooja and Dr. Deepti. I think there's been a lot of enlightenment. बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको इन बातों में कोई संदेह रहा होगा कि क्या प्रेगनेंसी, मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि प्रेगनेंसी कोविड के दौरान प्लान करें कि नहीं, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि डॉक्टर दीप्ति का जो स्पेशलाइजेशन है वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में है, आईवीएफ ट्रीटमेंट्स में, जो कि एक स्पेशलाइजेशन है गायनेकोलॉजी का। तो ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो आईवीएफ प्रेगनेंसीज को ऑप्ट करती हैं, और उस दौरान स्पेशली क्योंकि आप अपने आईवीएफ सेंटर पे कई बार नहीं जा सकते हैं क्योंकि ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो देन उस वक्त वो फोन पर अपने डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं। तो वो कितना कंफर्टेबल है, कितना फीजिबल है, ये समझना भी मतलब एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो मुझे लगता है कि जो सारे सवाल अभी इस वक्त डॉक्टर दीप्ति ने आंसर किए हैं, जिनका जवाब दिया है, बहुत से लोगों को इससे कुछ सीखने मिला है। और आप जाकर के, जो लोग आज हमें वेबिनार में जिन्होंने ज्वाइन किया है, मैं आपसे ये दरख्वास्त करूंगी कि आप आगे इन जवाब जो आपको मिले हैं, जो ये इंफॉर्मेशन आपने पाई है आज, इसको आप जरूर अपनी कम्युनिटी में उन ऐसे लोगों तक पहुंचाए जिनको इसकी खास जरूरत है, इस इंफॉर्मेशन की। क्योंकि इस वक्त, इस जमाने में, ये जो टाइम जो चल रहा है, इंफॉर्मेशन इज की, information helps in prevention. So now taking this forward, Dr. Deepti, I would like to take this next session, which largely goes on to about breastfeeding as well. हमने pregnancy के conceiving के बारे में बात किया कि pregnancy के वक्त कैसी चीजें होनी चाहिए, क्या होना चाहिए। My question to you is, जो इस पहलू में हम बात करना चाहते हैं कि क्या कुछ pregnant women हैं जो ज्यादा risk पे हैं? Do they become more serious and unwell from COVID-19 than others? तो क्या एक प्रेग्नेंट महिला और दूसरी प्रेग्नेंट महिला के कोविड-19 का संक्रमण उनको डिफरेंट तरह से रिएक्ट करेगा, उनको अलग असर देगा? थैंक यू प्रज्ञा, बिकॉज मैं ये सोच रही थी ये क्वेश्चन के लिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जिसको मैंने कहा था कि मैं आऊंगी इस पे, हाई रिस्क ग्रुप। तो वुमेन स्पेशल होती है, ये थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, इनको थोड़ा ज्यादा प्यार चाहिए होता है एक्चुअली। तो ये वो औरतें हैं जिनको थोड़ी सी मिठास होती है, या थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। मिठास यानी डायबिटीज, ठीक है। तो या तो वो डायबिटीज वाली है, या वो उनको हाइपरटेंशन है, या दूसरी दूसरी कोमॉर्बिडिटीज हम जिन्हें कहते हैं, वो हो सकता है। तो बेसिकली प्रेगनेंसी अपने आप में एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शक्कर बढ़ जाता है, थोड़ा सा शुगर बढ़ता है ऑलरेडी। और खासकर वी इंडियंस, हम लोग सेंटर हैं डायबिटिक के, वी आर द कैपिटल ऑफ डायबिटीज, इंडिया इज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज। सो इंडियन वुमेन का खासकर काफी बढ़ता है। एज द प्रेगनेंसी गोज ऑन, द शुगर लेवल इंक्रीजेस, बिकॉज जो प्लेसेंटा है, जो आफ्टर बर्थ है, वो रेजिस्टेंस होता है इंसुलिन के लिए, तो वो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, शुगर बढ़ता जाएगा। एंड द प्रेग्नेंट वुमेन जिसको ऑलरेडी रिस्क है, या जिसकी एज ज्यादा है, या जिसके घर में फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, ये सारी की सारी औरतें जो है, या जिनकी ट्विंस प्रेगनेंसी है, ये सारी औरतों को ऑलरेडी रिस्क है, ठीक है। अब ये एक अलग ही ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं हाई रिस्क ग्रुप। हाइपरटेंशन, डायबिटीज, मल्टीपल प्रेगनेंसी, कार्डियक डिजीज, ये सारी औरतें एक अलग रिस्क में है, ये थोड़ी ज्यादा स्पेशल है। तो इनको कोविड में ज्यादा रिस्क है, इनको डिटोरिएट होने का ज्यादा रिस्क है। इसीलिए इन औरतों को अपने आप पहले से ही अपने आप को घर में, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, उन्हें अपने आप को पहले सेल्फ आइसोलेट करके रखना चाहिए। दे शुड डू इट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि वो बेटर है नॉट टू गेट इट। अगर वो आती हैं, दे हैव टू स्टार्ट मॉनिटरिंग देमसेल्फ, देन उनको अपने आप को एस्केलेट कर दे अपने गायनेकोलॉजिस्ट को कि मुझे सिम्टम है, ताकि उनकी गायनेकोलॉजिस्ट उनके जो है स्कैन्स और उनके जो अपॉइंटमेंट्स है उनके अरेंज कर सके, उनके शुगर मॉनिटरिंग, उनका सब कुछ, उनका ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग उनका कर सके। तो इसलिए उनका केयर थोड़ा ज्यादा जरूरी है। उन्हें अपनी अगर कोई सिम्टम होता है तो उन्हें एस्केलेट करना पड़ेगा, उन्हें अपने गायनेकोलॉजिस्ट को ये बात बतानी पड़ेगी कि मुझे ये चीज हो गई है, और उन्हें बहुत क्लोज मॉनिटरिंग की जरूरत है। क्योंकि अगर ये औरतें
खासकर थर्ड ट्राइमेस्टर में है, तो ये डिटोरिएट होने के चांसेस इनके ज्यादा हैं। इसलिए इनको पहले से अपने आप को सेफ रखना है, और इन्हें अपनी मेडिकल डिसऑर्डर जो प्रेगनेंसी में है उन्हें वेरी वेल कंट्रोल्ड रखना है। इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि उनका शुगर मॉनिटरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। इस टाइम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो मल्टीपल प्रेगनेंसी, कीप एन आई ऑन योर बेबी मूवमेंट, कीप अ क्लोज आई ऑन योर बेबी मूवमेंट। आप अपने बेबी के मूवमेंट पे, अभी मुझे रिसेंटली, मतलब सो फार जो यूके में जो गाइडलाइन है, यहाँ पे हमने वो केस नहीं देखे, बिकॉज जो यूके वुमेन है दे आर कंसिडर्ड एज अ लेस रिस्कियर देन द एथनिक माइनॉरिटी जो कि एशियन वुमेन्स है। सो ये जो एशिया, इसलिए यहाँ पे हमें वो चीजें नहीं मिली जो मुझे इंडिया में जो केस रिपोर्ट्स आ रही है, लाइक देयर इज अ सडन, क्या हो रहा है कि मैंने पहले जो बोला कि प्रेगनेंसी में ब्लड स्टिकी हो जाता है और कोविड जो है वो ब्लड को थोड़ा और थिक कर देता है। तो इस कारण से इंडिया में जो केसेस रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं कि सडन बच्चा पेट में, मतलब बच्चा मर जाता है। बेसिकली ये मैं सीधे सीधे अगर बोलूं तो बच्चा के साथ ये हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ब्लड क्लॉट्स हो रहे हैं प्लेसेंटा में, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं तो ऑक्सीजन नहीं जा पाता है। इसलिए कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड, स्पेशली इफ यू आर हाई रिस्क, more care is needed now. You have to be very careful for your diet, your blood sugar control, your hypertension control, your baby growth। अगर किसी का बच्चा छोटा है, यानी आप बोलते हैं जिसको बोलते हैं IUGR बेबी, यानी बच्चा छोटा है, जितना होना चाहिए उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है, आपको बहुत ध्यान रखने का पड़ेगा इस टाइम। बच्चे का भी ध्यान रखना है, माँ का भी ध्यान रखना। सो कीप योर सेल्फ वेरी सेफ दिस टाइम, प्लीज प्लीज प्लीज। आपकी हर मेडिकल डिसऑर्डर को वेरी वेल कंट्रोल रखें। अगर आपको लगता है आपको सिम्टम है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत बताएं, ये चीज तुरंत बताएं। डोंट डू एनी सेल्फ मेडिकेशन प्लीज इस दिस टाइम, क्योंकि ये हो सकता है कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको ब्लड थिनर या एंटी मेडिकेशन एडवाइस करे। वो हो सकता है आपको एडवाइस करे। डोंट टेक इट बाय योरसेल्फ, escalate it so that she can assess and can guide, and I am happy to answer anyone. I am telling you here on this platform कि मेरा नंबर मैं प्रोवाइड कर दूंगी, व्हाट्सएप नंबर। इफ एनीबडी, एनी प्रेग्नेंट लेडी हैज एनी डाउट, प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कांटेक्ट मी। आई विल ट्राई टू हेल्प एवरीवन एज मच एज आई कैन। डेफिनेटली, ये तो बहुत ही राहत की बात है मैम, आपने ये जो बोला है। और बहुत सी महिलाएं हैं जो इस वक्त दे आर कनेक्टेड विद अस ऑन दिस वेबिनार, एंड आई कैन सी दैट देयर इज अ फ्लरी ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी इन आवर चैट बॉक्स। बहुत से क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो रेडी हैं, और मैं बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर दीप्ति ने काफी क्वेश्चंस एज एंड व्हेन हम अपने सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे, आप गौर से सुनेंगे, आप समझेंगे कि काफी क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी इंक्लूड हो रहे हैं, जिनका आंसर दिया भी जा रहा है। लेकिन बहरहाल उसके अलावा भी जो क्वेश्चंस होंगे दैट वी आर गोइंग टू डेफिनेटली एड्रेस, उनके ऊपर भी डॉक्टर दीप्ति बात करेंगी। बट फॉर नाउ वी वुड लाइक टू गो टू द नेक्स्ट क्वेरी डॉक्टर, is it's about the trimesters. So what is the special advice that you have for those who are in the first trimester, that is less than the 12-week period? What have you got to say on that? राइट, सो लेस देन 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन द फॉर्म, क्योंकि बच्चा उस टाइम बन रहा होता है। ठीक है, ये बच्चे का ऑर्गेनोजेनेसिस हम जिसे कहते हैं, यानी इस टाइम बच्चा बन रहा होता है, उसके ऑर्गन्स बन रहे थे। अगेन, don't self medicate yourself because not all the medicine are safe during this time. You are a less riskier group compared to the women who are in the third trimester. जो आखिरी के 3 महीने, उससे तुम थोड़ा कम खतरे में हो, लेकिन अपने आप को सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी। अगर आपका अल्ट्रासाउंड हुआ है और आपको पता है कि आपका बच्चा सही जगह पे है, फाइन इनफ, जस्ट डू द रूटीन केयर जो भी आपका है, नॉर्मल विटामिन। अगर आपको नौशिया वोमिटिंग है, आपकी डॉक्टर जो आपको दवाई दे रही है, आप बस उतना लें, फॉलिक एसिड इज इनफ, दैट्स इट, नथिंग एल्स। अगर आप प्रेगनेंसी लोकलाइज नहीं हुआ, यानी आपको सिर्फ ये पता चला है आज कि मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, बस आपको ये पता चला ब्लड यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से, आप अपने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश करें अपने डॉक्टर से। इस अपॉइंटमेंट के बीच में और प्रेगनेंसी टेस्ट जो आपका हुआ है, इसके बीच में अगर आपको पेन होता है खासकर, या ब्लीडिंग होते हैं, काइंडली एस्केलेट इट, बिकॉज हमें ये नहीं पता कि आपकी प्रेगनेंसी कहाँ है इस टाइम, या प्रेगनेंसी प्रॉपर ग्रो कर रही है कि नहीं। क्योंकि इस टाइम जस्ट घर में बैठ के, अगर सपोज प्रेगनेंसी आउट ऑफ द वुम्ब है,
है ना, अपनी बच्चेदानी के बदले में कहीं और है, वो बहुत आपके रिस्क के लिए हो सकता है, क्योंकि ये 12 हफ्ते में हमें, अगर आपका अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ तो हमें पता नहीं आपकी प्रेगनेंसी कहाँ है, वो कहीं पे भी हो सकती है, भले ही उसका चांस कम है, बट डोंट इग्नोर इट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि अगर आपका लोकलाइजेशन नहीं हुआ है, आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को बोले, अगर आपको पेन है, अनयूजुअल सिम्टम है, ब्लीडिंग है, आप उससे एस्केलेट करें सो दैट शी कैन अरेंज अल्ट्रासाउंड फॉर यू। और अगर आपको नोजिया वॉमिटिंग है, नॉर्मल मेडिकेशन कैन बी ओके, बिकॉज इट कुड बी कोविड ऑल्सो, इट कुड बी नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम ऑल्सो। अगेन टू थिंग्स आर देयर गोइंग side by side, normal pregnancy symptom can be nausea vomiting, covid symptom can be nausea, so manage both thing together। आपको ये सोच के रखना है कि ये भी हो सकता है या वो भी हो सकता है, बस अपने आप को मॉनिटर करें, यू आर स्पेशल। that's right। तो इनिशियली मतलब जब खुशखबरी मिलती है दैट प्रेगनेंसी है, तो उस वक्त भी डॉक्टर दीप्ति का मंत्र है दैट मॉनिटर मॉनिटर मॉनिटर, कीप मॉनिटरिंग। दैट्स राइट। एंड लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की हमारी बात हो गई है। डॉक्टर आप बताइए कि जो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर है, इस वक्त प्रेगनेंसी कंफर्म है, एंड इनफैक्ट द क्रिटिकल पीरियड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हैज मूव्ड ऑन 12 वीक्स बियॉन्ड, मोर और लेस एक कॉन्फर्मेशन आ जाती है, यू नो द फीटल पोल इज लोकेटेड, the sac is in place, ये confirm हो जाता है कहीं ना कहीं that whether it's a ectopic pregnancy or not. So the first few good news are in place. But then what would you suggest, Dr. Deepti, for the second and the third trimester, also if the mother happens to be COVID positive? Right. So second and third trimester, again different. Second trimester is a bit easy time, you know, for the women symptom wise भी उसके लिए वैसे भी normal pregnancy में वो थोड़ा अच्छा हनीमून पीरियड कह सकते हैं हम, होता है प्रेगनेंसी का, थोड़ा अच्छा लगता है उस टाइम। थर्ड ट्राइमेस्टर अगेन फिर थोड़ा सा डिफरेंट चालू हो जाता है, क्योंकि बट लेकिन सेकेंड ट्राइमेस्टर से आप थोड़े आपके, जब आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंचेंगी, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको नियरली 20 वीक्स आपका अल्ट्रासाउंड अरेंज करवाएगी। वो अल्ट्रासाउंड अरेंज होता है एनामली स्कैन के लिए, गो फॉर इट, इट इज नीडेड, डोंट डिले इट, इफ यू आर नियर दैट टाइम अरेंज, आप आपका एनामली स्कैन करवाएं, बिकॉज हमें पता करना है बच्चा कैसा है। उसके पहले कुछ और रूटीन स्क्रीनिंग होती है, लाइक ब्लड शुगर की स्क्रीनिंग होती है, या उस टाइम जो है डाउन सिंड्रोम की स्क्रीनिंग होती है। अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट ने अरेंज करवाया, गो फॉर इट, ठीक है। अगर आप उस पीरियड को क्रॉस कर चुके हैं, आपका एनामली स्कैन भी ठीक है, आपका ब्लड शुगर ठीक है, आप जब से अपने आप को मॉनिटर करते हैं, अगर आपको कोविड पॉजिटिव हो चुकी है, आप जस्ट मॉनिटर करें। लेकिन आपको बच्चे की, बिकॉज 20 वीक्स ऑनवर्ड आपको फीटल मूवमेंट पता करना शुरू हो जाएगा। अब आपको अपने बच्चे के बारे में ध्यान रखना भी रखना है। अब आप अपने बच्चे के फीटल मूवमेंट पे ध्यान रखना शुरू करें अपने साथ साथ, क्योंकि इसके पहले तो आपको पता नहीं रहेगा कि बच्चा कर रहा है कि नहीं। सो एवरीथिंग वुड डिपेंड ऑन योर सिम्टम, इफ ब्लीड और एनीथिंग, देन ओनली यू विल नो दैट समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। बट 20 वीक्स ऑनवर्ड यू मे स्टार्ट गेटिंग, यू नो, फीटल मूवमेंट, सो कीप एन आई नाउ दैट टाइम, क्योंकि अब आपको अपने बच्चे का ध्यान रखना है अपने साथ साथ। अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं, अगेन escalate it to your gynecologist, because recently we have noted the sudden IUD. There is a intrauterine fetal death has been seen in the second trimester and the third trimester, and there is a little higher risk of preterm birth in the women if she is a COVID positive. Preterm birth, prematurity का risk थोड़ा सा ज्यादा है. It is roughly around 20% higher risk for women if she is a COVID positive compared to the women who is COVID negative. उसमें prematurity का risk थोड़ा सा ज्यादा है. So just keep an eye yourself. Every management is a symptom based. I just want to make sure you, all of you, जितना भी मैनेजमेंट है ना कोविड का, वो सिम्टम बेस्ड है, इट इज नॉट द टेस्ट बेस्ड। अगर कोविड पॉजिटिव है, वी आर नॉट गोना ट्रीट यू एट ऑल अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है। होल मैनेजमेंट इज सिम्टम बेस्ड, सो मॉनिटर योरसेल्फ, कीप एन आई ऑन योर सिम्टम, एनीथिंग अनयूजुअल एस्केलेट इट, दैट्स इट। ये भी हो सकता है कि अगर आप थर्ड ट्राइमेस्टर है और अगर आप कोविड पॉजिटिव है, आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताएं, बिकॉज there is a chances she has to give you some steroid, not for you only this time it is for the child, because there is a risk कि बच्चे को प्रीमेच्योरिटी का रिस्क है, तो उसके बच्चे को लंग्स का मैच्योर करना है, या मैग्नीशियम सल्फेट जो मैक्सल्फ देते हैं फॉर द बेबी के ब्रेन के मैच्योरिटी की, जस्ट गो फॉर दैट।
अगर आपको जो है ब्लड थिनर की जरूरत है, अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को लगता है कि वो जरूरी है, गो फॉर दैट। बट एंटीबायोटिक का रोल थोड़ा कम है। प्लीज अवॉइड एनी व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन, प्लीज अवॉइड एनी व्हाट्सएप प्रिस्क्रिप्शन। HRCT अगेन आई वुड से देयर आर, आई हैव सीन द केसेस जब प्रेग्नेंट औरतें जैसे उनका कोविड पॉजिटिव आता है वो डर के मारे जाके खुद ही जाके HRCT करवा लेते हैं। डोंट डू इट। देयर इज नो रोल ऑफ HRCT in the COVID management. It is a, I don't know why the people are doing HRCT. HRCT का अपना आप खुद पेशेंट के ऊपर और वो जो बच्चा है अंदर उसके ऊपर रिस्क है, बिकॉज इट्स अ रेडिएशन एक्सपोजर एंड इट इज यूजुअली नॉट चेंजिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कोई अंतर खास कर नहीं आता है। HRCT is kept only for very severe cases if the patient is not responding for the COVID management, क्योंकि हमें तब ये पता करना होता है कहीं कुछ और तो नहीं है, तब HRCT का रोल होता है। तो आप अपने मर्जी से HRCT मत करवाएं, प्लीज मत करवाएं। सिर्फ अपने सिम्टम को मॉनिटर करें, आप चार्ट बनाएं, आपका मैनेजमेंट उस हिसाब से होगा। बस मैं मुझे इतने इसके बारे में मतलब मेरा मेन जो ये है कि ये कहना है कि डोंट डू एनीथिंग बाय योरसेल्फ। Right. So self-medication is a big no-no during your pregnancy, बिग नो। be it any semester of the pregnancy or any trimester. Also, doctor, कई बार लोगों की ये भी सवाल है कि अब क्योंकि हर जगह लॉकडाउन है, your conventional places are not functioning. तो क्या इस दौरान रूटीन एंटीनेटल अपॉइंटमेंट्स एंड अल्ट्रासाउंड अपॉइंटमेंट्स को हम कंटिन्यू करें, जिस तरह से जारी है उसी तरह से कर सकते हैं? राइट। सो क्या है कि रिसेंटली, बिकॉज लास्ट टाइम आल्सो ये क्वेश्चन की बात हुई थी और रिसेंटली थोड़ी सी चीजें चेंज हुई इंडिया में। नाउ द मेनी फर्टिलिटी ऑब्स्टेट्रिशियन सेंटर जो है, तो मैटरनिटी सेंटर है या हम बोले जो गायनेकोलॉजिस्ट के जो हॉस्पिटल हैं, दे हैव चेंज देयर पॉलिसी and they are keeping either as a COVID cases or non-COVID cases. So if you are registered with a non-COVID hospital जो कि सिर्फ non-COVID cases ले रहा है, you have to go for all your routine appointment. देयर ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको मना कर दे अगर आप कोविड पॉजिटिव आ गए हैं कि हम तो आपको नहीं देखेंगे। ये बहुत ही स्ट्रेंज हो सकता है आपके लिए और बहुत सैड भी हो सकता है। एट दैट टाइम डोंट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट द हॉस्पिटल, स्पेशली द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स or any nearby hospital where the maternity services are going on, and contact them so that your routine appointment should not, वो मिस ना हो। बिकॉज मैंने जैसे बोला कि इस एक हफ्ते में मुझे इतना ज्यादा पता चला हुआ है सडन इंट्रायूट्राइन फीटल डेथ का, इतना ज्यादा पता चला कि आई फील वेरी सैड, वेरी सैड। एंड वी यूजुअली कांट डू मच, बट वी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, not government of India, basically obstetric gynec society, the different state ki hai, they are trying to work to update their guidelines so that what they can do to avoid or to reduce this intrauterine fetal death. So please don't miss your appointment. If your doctor is not taking you, try to contact the centers, especially like the government centers are still, I am hopeful that they would be able to take you. Contact them, don't run, try to use the phone or something like that, just see what it can help. And again, I want to say, if I can help you at any point, I'm happy to do that. Sure. Dr. Deepti is always available on call, and in fact, she has encouraged the participants जो अभी यहाँ हैं इस वक्त, उनको encourage करनी है कि अगर आपको किसी तरह की सहायता नहीं मिल रही है आपके local gynecologist obstetrics के department में, so you can reach out to Dr. Deepti, of course, and she can guide you further. Also, during this webinar, I'd like to introduce Dr. Niti also, who's here, who's joined us. So, welcome, Dr. Niti. And moving forward, अब हम बात करना चाहते हैं about when the baby is born, that is after the baby's birth. Are there any increased risks to the baby and to the mother? चल रहा है, कुछ जरूरी चल रहा है। So far the study has said that mother they are not at high risk of passing the disease to the child. बहुत ही few cases मिले, very few cases so far कि बच्चे को मदर कोविड नहीं देती है बेसिकली। लेकिन अगर मदर से कोविड पॉजिटिव है और बच्चा पैदा हो गया है,
एट दैट टाइम नाउ वी हैव टू बैलेंस बिटवीन द रिस्क ऑफ माँ को बच्चे के साथ रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि वो माँ को एक दिमाग में एक ही बात होती है, अरे मेरे कारण कहीं बच्चे को ना हो जाए। सेम जो है, जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है, वो औरत माँ एक चाहती है, जैसे लाइक टुडे इज मदर्स डे एंड आई नो दैट सारे के सारे हम जो है वो एक ही चीज सोचते हैं कि अरे मेरे कारण मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। So, एक और को बच्चा होता है तो उसके अंदर भी यही बात आती है। This postpartum period is a bit than the antenatal period, not only physically but emotionally for the female. वो मिक्स्ड इमोशन के साथ जाती है, उसको डिप्रेशन हो सकता है जो कि बहुत इजीली इंडिया में इग्नोर किया जाता है। शी मे क्राई, शी मे हैव अ वेरी डिफरेंट फीलिंग्स, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हर आल्सो, we need to take care of a child also. WHO is recommending to keep the mother and child together even if the mother is positive unless she is very severely ill, because अगर माँ को बच्चे के साथ नहीं रख रहे हैं, मदर अगर माइल्ड केस है, मॉडरेट केस है, it can affect the bonding and the breastfeeding. So we encourage that they can together, but again hygiene is important and mother should wear the mask, and बच्चे को जब भी छू रही है या ब्रेस्ट फीड करवा रही है उस टाइम हैंड हाइजीन एंड रूटीन हाइजीन का ध्यान रखें. But again, it is a choice. It is a choice. It should be the choice of a female, not the family. उसको क्या लग रहा है? What she thinks. Not the family is only can decide कि नहीं नहीं तुमको कोविड हुआ है, तुम बच्चे को नहीं छुओगी, because she may go through the mental, so much. बहुत ही different period होता है postpartum. She may feel that she is the one who is not able to see the child, so ask to her what she want. If she is stable, especially अगर वो mild disease है, ask her whether she would like to have a child together. That's okay, that's okay, because being, that's okay, there is a risk to the child is very less always. Right. So, doctor, going forward, कॉन्ट्रासेप्शन पोस्ट प्रेगनेंसी एक थोड़ा इम्पोर्टेंट मुद्दा है औरतों के बीच में, नई माएँ जो बनी हैं। कई बार ऐसे भी मिसकॉन्सेप्शंस हैं जो मुझे लगते हैं मिसकॉन्सेप्शन, आप प्लीज इस पे क्लियर करिए कि ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त प्रेगनेंसी इज नॉट पॉसिबल और इट्स अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन, ब्रेस्ट फीडिंग इज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट प्रेगनेंसी। ऐसी भी धारणाएं लोगों में हैं, लेकिन आप बताएं डॉक्टर कि ऐसे कौन से मेथड्स हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के सूटेबल हैं आफ्टर डिलीवरी? Right, so breastfeeding is not a very good contraceptive. First of all, it is effective only till next 4 week. 1 महीने के लिए सिर्फ इफेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि द मोमेंट अगर, और इट्स ऑल डिपेंड कि माँ बच्चे को कितना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड करवा रही है. वो तो मम्मी ने फेंक दिया. अगर वो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करवा रही है तो भी हम इसे एक इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव सिर्फ 1 महीने के लिए मानते हैं, 4 हफ्ते के लिए. उसके बाद इसकी थोड़ा सा डगमगाने लगता है. सो इफ शी वांट एन इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव, शी हैज टू यूज अ रिलायबल कंट्रासेप्टिव. अब ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड थोड़ा सा जो ब्लड स्टिकी थोड़ा ज्यादा हो चुका है इस टाइम कंपेयर टू प्रेगनेंसी, हर कंट्रासेप्टिव यूज नहीं किया जा सकता. सो ये नहीं है कि औरत बिना किसी डॉक्टर की सलाह के जो ओवर द काउंटर ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स यूज करती है, प्लीज डोंट यूज इट, प्लीज डोंट यूज इट. हमें नॉन हार्मोनल को फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम उसका ब्लड थोड़ा सा थिक है, और ये वाली जो दवाइयां होती है ना ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये थोड़े ब्लड को थोड़ा और स्टिकी बना देती हैं, तो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है. और उसके बाद कोविड आ गया तो वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, वो उसको और ज्यादा थिक बना देगा. सो दैट्स व्हाई ट्राई टू यूज द नॉन हार्मोनल कंट्रासेप्टिव लाइक आईयूडीज जिसको हम बोलते हैं ना, इंट्रायूट्राइन डिवाइस, कॉपर टी या इस टाइप के डिवाइस, या प्रोजेस्ट्रॉन ओनली डिवाइसेस जो होते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली, वो यूज किया जा सकता है. वी एनकरेज द कॉन्डम्स एंड ऑल दिस थिंग. दिस इज मच बेटर. डोंट यूज द नेचुरल कंट्रासेप्टिव लाइक ब्रेस्ट फीडिंग. बहुत ही ज्यादा फेलियर रेट है उसका, बहुत ज्यादा. तो डॉक्टर, लेकिन आपने ये बात तो बता दी है कि although there are very few chances that from the mother COVID infection spreads to the child,
मतलब कि आइसोलेशन का ध्यान रखिए, बट कोई ऐसा कुछ है जो आप मॉनिटरिंग के लिए बता सकती हैं, दैट like how can people monitor it and monitor, and how do people in isolation, a mother who is in isolation, वो कैसे अपने बच्चे के साथ कनेक्टेड भी रहे, ध्यान भी रखे, लेकिन इन्फेक्शन का, संक्रमण का जो चांस है वो कम से कम रहे? राइट, मास्क, हैंड हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग। बच्चे और माँ को दोनों को एक कमरे में रखें। वी कैन यूज द कॉट, बच्चे को कॉट में रखें। जब उसे ब्रेस्ट फीड करवाना है वो ब्रेस्ट फीड करवाए, बट उसके पहले हैंड हाइजीन, अपना मीन्स ऑल द हाइजीन जो भी हमें आप करना है, जो नॉर्मल एडवाइस है वो यूज करें। फीड द बेबी, अगेन कीप इट। सो वो करके वो बच्चे को अपने साथ कमरे में भी रख सकती है। कीप द रूम वेंटिलेटेड, जब भी बच्चे को पास ला रही है मास्क पहने। मेक श्योर मास्क कपड़े का ना हो। ये चीज मैं बताना चाहती हूँ कि यूज द सर्जिकल मास्क, बिकॉज सर्जिकल मास्क जो होता है वो 3 लेयर होता है। इनर लेयर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, बीच में एक लेयर होती है जो कि पार्टिकल को आने नहीं जाती, जो कि रोकती है। बाहर की लेयर जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, तो वो रेपेल करती है। तो मेक श्योर आप उसको यूज करें, क्योंकि कपड़े के मास्क के साथ एक प्रॉब्लम है, उससे बड़े आसानी से आ सकता है। इट इज नॉट इफेक्टिव। सो वी डोंट एनकरेज एनीवन टू यूज द ये कपड़े का मास्क। हमको भी यहाँ पे मिला था, एंड व्हेन आई यूज्ड इट आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई कांट फील एनीथिंग, मुझे तो पूरा सांस अच्छे से आ रही है। तो मैं आई जस्ट स्टॉप्ड यूजिंग इट एट ऑल। So I always encourage to use the surgical mask, especially if the woman is pregnant, breastfeeding. That is much better. That is more safe. And it reduce, we have seen here, like during in the, I will just give you out of this contest, I will just give you the example in UK. The first wave आई थी UK में, because UK people, they don't have the culture of wearing the mask. यहाँ पे हम ऑपरेशन थिएटर में भी नॉर्मली मास्क नहीं पहनते हैं. So the first wave आई तो यहाँ पे प्रिपेयर नहीं थे, and that resulted in the lots of medical professionals जो है उनको कोविड हुआ. उसके बाद इमीडिएटली गवर्नमेंट ने यहाँ पे मास्क अवेलेबल करवाया और मैंडेटरी मास्क हो गया. अब ये हो गया कि आप हॉस्पिटल के अंदर घुस नहीं सकते बिना सर्जिकल मास्क के. एंड देन सेकेंड वेव केम एंड विच वाज वेरी बैड हियर. यहाँ पे सेकेंड वेव भी की हालत बहुत खराब थी, इंडिया जैसी कुछ टाइप की थी. बट एट दैट टाइम बिकॉज वी वर यूजिंग नॉर्मल सर्जिकल मास्क, द इन्फेक्शन रेट वॉज वेरी लो. It was not till like in vaccination, before even vaccination, the infection rate was very low, and we have seen the patient face to face with only surgical mask. covid positive patient को हमने deliveries करवाई हैं normal surgical mask से, not only N95, normal surgical mask यूज करके हम लोगों ने patient की deliveries करवाई हैं, patient को देखा है, and the risk was so low. इतने कम incidents हुए हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल में just by the surgical mask and hand hygiene. So I would encourage all of you to use the surgical mask and hand hygiene and social distancing. That's it. That's right. That's right. So self hygiene, self monitoring is very important. It is the mantra, and no panicking. No panic. Yeah. That's right. Also, डॉक्टर, लोगों की ये भी क्वेरी आ रही है कि क्या ब्रेस्ट फीडिंग कोविड पॉजिटिव मदर्स, इज इट ओके, इज इट सेफ, व्हाट इज योर थॉट? Yeah, so WHO has and FIGO, they have given a very good, guidelines regarding that. Because क्या होता है यहाँ पे आप again आपको रिस्क और बेनिफिट में बैलेंस करना है. Because mother's milk is very important for the child, not only at that time but for the whole life, because it prevents the newborn child from many disease. It gives the immunity. It is a immunity pack of immunity. बहुत ज़्यादा immunity मिलती है उस time. In COVID we need the immunity. Okay. Definitely. और like long standing disease like obesity, diabetes, bronchial asthma, इन सब से मदर का वो जो शुरू का मिल्क होता है ना, वो बच्चे को बचाता है. बट वी आर वरीड अबाउट अ चाइल्ड कि माँ से बच्चे को हो तो नहीं जाएगा, ये एक डर होता है. सो व्हाट द WHO इज सजेस्टिंग दैट ट्राई टू अवॉइड नॉट टू स्टॉप द ब्रेस्ट फीडिंग अनलेस मदर इज वेरी सीवियर और क्रिटिकली इल. ओके, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर वो सीवियर है या क्रिटिकली इल है तब तो दे नहीं सकते. अदरवाइज अगर वो मॉडरेट और माइल्ड है, वी एनकरेज द ब्रेस्ट फीडिंग. देयर आर फ्यू कंट्रीज जहाँ पे बच्चों को तुरंत सेपरेट कर दिया जा रहा है, बट स्टिल द रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड WHO इज नॉट एडवाइजिंग इट. They are advising that breastfeeding can be done. Again, it's a mother's choice.
If she doesn't want, then she can do the expressed milk. वो milk को express करके किसी को दे सकती है जो कि बच्चे को पिला दे, because breast milk is most important. अगर वो भी नहीं चाहती है, then she can choose for the bottle feed. But because जो breast milk है उसमें वो immunity है, उसमें वो उससे वायरस नहीं जाएगा, इम्यूनिटी के पैकेट्स जाएंगे बच्चे में. That's why it is very important to give the child that breast milk. If she doesn't want, it's her choice. Okay. So more or less you continue only until there is very serious, then there can be a decision that can be taken. Yeah. Okay. Dr. Deepti, another important aspect is वो तो कोविड ना हो, लोगों के मन में ये हमेशा चलता रहता है, द्वंद है एक तरह का, नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगा. अब वो तो द्वंद रहता ही है. अब उसके अलावा एक और ये कोविड नाम की चीज आ गई है, तो लोगों के मन में ये है कि वेजाइनल डिलीवरी या सी सेक्शन, विच वन इज सेफर ड्यूरिंग कोविड? प्लीज आंसर डॉक्टर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. हाँ प्रज्ञा, और मैं इसमें तुम्हें एक और द्वंद ऐड कर देती हूँ. उसके बाद एक और द्वंद है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है. ठीक है, एक और बात है, ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि सिजेरियन सेक्शन में ना ऑक्सीजन की जरूरत होती है, क्योंकि वो होता है अंडर एनेस्थीसिया, और इस टाइम नहीं है ऑक्सीजन. ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि नॉर्मल इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज घर जल्दी जाओगे, नेक्स्ट डे घर चले जाओगे, अनलेस इट इज नॉट इंडिकेटेड, लाइक बच्चे की दिल की धड़कन ठीक नहीं है, या बच्चे को कोई तकलीफ है, या माँ को कोई ऐसी चीज है जिसमें नॉर्मल सेफ नहीं है, तब तो हमने चलो मान लिया क्योंकि उसकी सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है तो सिजेरियन कर लिया. लेकिन जस्ट फॉर द मैटरनल रिक्वेस्ट कि मुझे दर्द नहीं अच्छा लग रहा या मैं दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकती, आई वोंट एनकरेज दिस थिंग करंट टाइम, बिकॉज एक तो कोविड है, ज्यादा दिन हॉस्पिटल में रह जाओगे, दूसरा ऑक्सीजन नहीं है, तो बेहतर है कि डॉक्टर के लिए भी, खुद डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि डॉक्टर जो है जब वो नॉर्मल करते हैं तो थोड़ा पेशेंट से थोड़ा दूर रहते हैं, और पेशेंट जो है ना उसको इंट्यूबेट नहीं करना पड़ता या उन्हें कुछ ऐसी प्रोसीजर नहीं करना पड़ता जिससे कि वायरस जो गले से है वो निकल के बाहर हवा में आए. तो डॉक्टर के लिए भी बड़ा सेफ वेजाइनल डिलीवरी है, पेशेंट के लिए भी बड़ा सेफ वेजाइनल डिलीवरी है. So keep vaginal as much as possible unless it is not indicated because of the baby risk, like fetal distress और बच्चे ने पू कर दिया है या मदर को कोई रिस्क है. वेजाइनल इज मच बेटर एट करंट टाइम, सबके लिए, दोनों डॉक्टर, माँ, बच्चा और उसके घर वाला है, और पॉकेट फ्रेंडली. एक साथ 3 मुद्दे सुलझ जाते हैं सभी के लिए. इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल. यस, विन विन. तो गोइंग फर्दर डॉक्टर, हमने इस सेशन में ये सारे मुद्दे तो कवर किए ही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, द 3 आई मीन द वेरियस ट्राइमेस्टर्स ऑफ प्रेगनेंसी, and many other rumors were also in fact tackled by you in a very nice way where it has reached the people. I think जो महिलाएं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है उन तक ये बातें काफी अच्छे से अब वो समझ गई होंगी, बिकॉज इट्स लाइक मोर ऑफ अ वन ऑन वन चैट, और कोई परहेज नहीं, आपने सब कुछ बहुत अच्छे से बताया. तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी, पहली बात, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, काफी सारे ऑडियो इंटरप्शंस हो रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे ऑडियंस से कि वो अपने माइक्स को म्यूट पे रखें ताकि ये वेबिनार जो है सीमलेसली आगे बढ़ता रहे. और काफी इंफॉर्मेशन चल रही है, काफी इंफॉर्मेशन पास हो रही है. इट्स प्रूविंग टू बी अ वेरी इंफॉर्मेटिव वेबिनार फॉर women at large. So I appeal that women should in fact make use of this webinar, और आगे अपने community में भी इन चीजों को आप जरूर जो है कि फैलाएं. If you have a pregnant maid, आपकी जो घर में काम करने, आपकी सहायता करने लोग आते हैं, अगर उनमें से कोई प्रेग्नेंट है, कोई ऐसे लोग हैं जो मार्जिन ऑफ द सोसाइटी पर है, जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, प्लीज आप जरूर इन चीजों को उनको इन्फॉर्म करें, उनको बताएं, क्योंकि आपका ये इनिशिएटिव किसी और के लिए, जरूरतमंद किसी और के लिए एक लाइफ चेंजिंग एडवाइस हो सकता है. तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने नेक्स्ट एंड लास्ट सेशन में जाएंगे, एंड इसका मॉडरेशन करेंगी मिसेस शुभ्रा. सो आई रिक्वेस्ट शुभ्रा जी, आप प्लीज इसको आगे बढ़ाइए, इस सिलसिले को.
Rajesh? Good afternoon to all of you. Hello and welcome to today's session. We are having a webinar on how to manage pregnancy, lactation, and vaccination and others issue during COVID outbreak. और जिसका समाधान डॉक्टर दीप्ति मैम बहुत ही आसानी से कर रही हैं. Ma'am, we are extremely happy and it's a pleasure that you are amongst us. And till now, the session is very engaging, informative, and interactive. And ma'am, here is a question regarding COVID-19 vaccine for women. Can I take vaccine if I am having periods? Yeah, very interesting question. And you know, ये WhatsApp पे तो इतना चल रहा है ना, और बहुत ही मजेदार चल रहा है कि फर्स्ट क्योंकि अभी जी भी आया था कि फर्स्ट अगर 5 days बिफोर द पीरियड और 5 days आफ्टर द पीरियड डोंट वेट. रूमर फॉल हो रहा है कि 5 दिन बिफोर 5 दिन आफ्टर यू कांट टेक वैक्सीन. ऐसा रूमर फॉल हो रहा है कि कुछ इम्यूनिटी आएगी और फिर आएगी. सो आई वाज लाइक laughing and I was feeling frustrated both at the same time because ऐसा कुछ नहीं है. Please take your vaccination. Please take your vaccination. That is the only thing जिसके कारण हम शायद इस लड़ाई को जीत सके. क्योंकि अगर हम ये कहें कि हर्ड इम्यूनिटी लोगों को इन्फेक्ट करने में आ जाए तो उसके लिए बहुत लोगों को जाना पड़ेगा. तो बेस्ट है वैक्सीन ले ले. बिकॉज मैम ये रूमर है कि इम्यूनिटी डिक्रीज हो जाएगी ड्यूरिंग पीरियड्स, तो ऐसा कुछ नहीं है. कुछ भी नहीं है. प्लीज ऐसा कुछ भी नहीं है. बस ले वैक्सीन. वेबिनार चल रहा है वैक्सीनेशन पे. So next question is, ma'am, that if someone is trying to get pregnant, she can take vaccines? Right. Yes, she can take vaccine, but I would advise to take both the vaccine before trying the pregnancy. क्योंकि वैक्सीन के जब वो वैक्सीन लेगी तो उसको हो सकता है कुछ साइड इफेक्ट हो, लाइक बुखार आना, दर्द होना. तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कोविड हुआ है कि कोविड के वैक्सीन के कारण हुआ पहली बार. तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी कि पहले तो ये श्योर कर ले, हमें पता नहीं है तो एक वो लेने. दूसरा, उसको थोड़ी इम्यूनिटी मिल जाएगी दोनों वैक्सीन के लिए. दोनों वैक्सीन के बाद उसको एक, क्योंकि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो फिर हो सकता है वो डिले कर दे, वो दूसरी डोज ना ले पाए. सो मेक श्योर शी शुड टेक बोथ द डोज बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर ट्राइंग फॉर द प्रेगनेंसी. अगर वो नेचुरल ट्राई कर रहे हैं या वो फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेने चाह रहे हैं, चाहे वो कोई गोली हो, चाहे वो इंजेक्शन हो, IVF हो, कुछ भी हो, दोनों सिचुएशन में वो पहले वैक्सीन ले ले. दैट इज मस्ट. दैट इज बेटर. और अगर मैम प्रेग्नेंट हो गए तो उसके बाद वैक्सीन ले सकते हैं क्या? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि मिनिस्ट्री जो है हमारी ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हेल्थ है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, उसने अभी तक अपडेट नहीं किया है. लास्ट वीक मैं मतलब बिकॉज आई वाज वेरी वरीड एंड आई वाज ट्राइंग टू रेज दिस इशू, और आई ट्राइड टू कॉन्टैक्ट मिनिस्ट्री also, but I didn't get any reply. But in the meantime, जो Obs-Gynae Society of India है, they come up last week with their statement. So उन्होंने तो अपना स्टेटमेंट दे दिया, एंड होपफुली गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट है हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो भी अपना अपडेट कर ले कि वैक्सीन ले सकते हैं. हाउएवर, बिकॉज जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है उसमें फेडरेशन ऑफ ऑब्स-गायनी सोसाइटी ऑफ इंडिया, उन्होंने मना किया है क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि हाउ इट विल अफेक्ट द चाइल्ड, दो इट इज लुकिंग सेफ. स्पेशली लाइक इन यूके, इफ आई विल से, तो यूके में जो इंडिया की कोविशील्ड है, सेम वैक्सीन इज हियर कम्स एज एस्ट्राजेनेका, और यहाँ पे हम उनको एडवाइस कर रहे हैं दे कैन टेक इट. In India, we have 3 options. One is Covishield, one is Covaxin, and one is Sputnik. So ये तीनों वैक्सीन है. We are encouraging the women from the second trimester, if government allowed, please take it, because benefit of vaccine is more than the risk to the child or to the mom.
So that's why it is more important. So far it is looking good. If you are getting the option of getting the Covaxin or Sputnik, go for that, because जो blood clot की बहुत ही rare problem है, like 15 in 10 lakhs की जो incidence है in AstraZeneca या Covishield में, जो blood clot का एक risk है, especially in the people less than 40 year of age, जो कि हमारी fertility का time होता है, हमारा वो उसमें है, तो वो that is associated so far only with this Covishield, not with the Covaxin, and Sputnik ने तो report नहीं किया है. So I would say that if they get the option, that would be the preferred option, like AstraZeneca rather than the Covishield. Covaxin or Sputnik is much better. If India allows Pfizer, best. Pfizer is still not available in India. But if government can bring that हमारे यहाँ अगर आ जाती, I would recommend that go for Pfizer. It has a very good data, especially like in US, 20,000 women ने Pfizer and Moderna ली है, pregnant women ने ली है, and they all are very safe. और in fact जो कुछ औरतों ने जो deliver किया है, they passed the antibody to the child. So we would encourage if we can get the Pfizer in India, especially for this. I would be like pleased if Indian government can allow the Pfizer to all the pregnant women, especially because it's very costly. It's very costly, and if you have to pay from your pocket, please do it. Don't think that government free mein de hame, because it's very costly, but it is very safe considered so far. If we are not getting that option, go for the Covaxin. It is looking more safe because उसने अभी तक के कोई blood clot का कोई data आया नहीं है कि उसमें कुछ हो रहा है. Sputnik is also considered safe. Only the blood clot issue is coming with the Covishield. If you don't have the option, that's the only option because the benefit outweigh the risk here. But from the second trimester. So Covishield is more safe, ma'am. No, Covishield is Okay. not more safe. I would say Covaxin and Sputnik is considered as a more safe. The first option should be Covaxin and Sputnik. ज़्यादा safe consider. Okay. लेकिन अगर वो मिल ही नहीं रही है तो फिर कोविशील्ड ले लें, क्योंकि ये जो कोविड है इससे ज्यादा डर है, वैक्सीन से ज्यादा डर तो इसका है, कोविड का है, कोरोना का ज्यादा रिस्क है. तो तो जो मिल रहा है अभी उसको ले लें, जो मिल रहा है ज्यादा सेफ. Okay, ma'am. जरूरी है. So, question is, ma'am, that we can take vaccines during breastfeeding. कोविड वैक्सीन ले सकते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के समय? यस, बिल्कुल ले सकते हैं, पर अगेन वही सेम बात जो आती है जो मैंने कहा था कि कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक में, क्योंकि इनिशियल जो 6 हफ्ते होते हैं ना प्रेगनेंसी के, जो ब्रेस्ट फीडिंग का जो टाइम होता है उसमें थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम ज्यादा होती है कंपेयर टू ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. तो कीप योर सेल्फ वेल हाइड्रेटेड. अगर तुम्हें ऑप्शन कोवैक्सीन, स्पुतनिक, फाइजर का मिल रहा है, गो अहेड विद दैट. इफ नॉट एंड इफ यू वांट टू टेक कोविशील्ड, गो फॉर दैट, बट मॉनिटर योरसेल्फ अगेन, बिकॉज इस वैक्सीन के बाद अगर आपको सर दर्द की परेशानी हो रही है जो कि नॉर्मल पैरासिटामोल से नहीं जा रहा है. पैरासिटामोल इज नॉट फॉर फीवर ओनली, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू क्लियर इट. इट कैन हेल्प इन अ हेडेक, ओके, एंड वी टेक इट फॉर द हेडेक. सो अगर आप को उससे नहीं जा रहा है, कोई अनयूजुअल सिम्टम आ रहे हैं लाइक नमनेस है हाथ में या फेस में, यू हैव टू कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, बिकॉज कोविशील्ड के साथ एक प्रॉब्लम जो देखी गई, और खासकर ये यूरोपियन कंट्री में ज्यादा देखी गई है, ये एक अच्छी बात है कि ये ब्लैक्स या एथनिक माइनॉरिटी या कहें जो एशियंस है उसमें कम है, वो है क्लॉट की प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी क्लॉट की प्रॉब्लम इंडियंस में थोड़ा कम होती है कंपेयर टू द वाइट्स. तो यहाँ पे ये क्लॉट की प्रॉब्लम देखी गई है. इंडिया में अब रिपोर्ट हुई है कि नहीं मुझे पता नहीं है. सो आई वुड एडवाइस, इफ यू आर टेकिंग द कोविशील्ड इन द ब्रेस्ट फीडिंग टाइम, मॉनिटर योरसेल्फ. कोई अनयूजुअल सिम्टम है, एस्केलेटेड, so that can get treated at the right time. Otherwise, Covaxin is more safe and Sputnik is more safe. But you can take it. तो मैम जो एंटीबॉडीज जो बनते हैं वो पास होते हैं मिल्क के थ्रू बेबीज में? हाँ. राइट. So it is to protect the baby itself. Exactly. So it is quite safe. So nature बड़ा ये जो नेचर है ना, ये जैसी औरत जिस दिन उसके पेट में बच्चा आता है और उसकी हार्ट रेट चालू होती है ना, तो पूरी कायनात उस बच्चे के लिए काम करने लगती है. So female body start working toward that. After that, female is not thinking about herself. वो कभी नहीं सोचती है, ना उसकी बॉडी सोचती है. So breastfeeding में भी वो जो दवा लेगी ना,
वो दवा खुद लेती है और उसकी असर जो है अच्छा वाला असर वो बच्चे को दे देती है. So if she will take vaccine, she will pass the antibody to the child. Okay, ma'am. Ma'am, if I had COVID in past, तो मुझे medicines कब लेनी चाहिए? अगर पहले कभी कोविड हो चुका है तो कब से medicines लेनी चाहिए? कब लेनी चाहिए? हाँ, तो वैक्सीन आपको लेनी चाहिए. हर वैक्सीन के अलग अलग डिफरेंट है, बट वी आर एडवाइजिंग एटलीस्ट 1 month रुक जाए. एटलीस्ट बेस्ट इफ यू कैन वेट फॉर 2 to 3 months, दैट इज बेस्ट. क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में कुछ हंगामा हुआ पड़ा है, दूसरा हंगामा मत कर दें. सो बेस्ट है कि थोड़ा सा रुक जाएं एंड लेट इट गेट सेटल, बिकॉज आपके पास अभी नेचुरल एंटीबॉडी है जो थोड़े दिन काम करेगी आपके पास. वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये याद रखें कि कोविड एक बार हो गया, उससे रिकवर हो गए, आपको लॉन्ग लास्टिंग एंटीबॉडी नहीं मिलेगी. आपको नहीं मिलेगी. आप ये मत सोचें आप इम्यून हो चुके हैं. आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करें और फिर ले. और एक और चीज ये ध्यान रखना है कि हो सकता है हम सबको ये कोविड वैक्सीन की डोज बूस्टर लेनी पड़े, जो कि शायद हर साल लेनी पड़े, जैसे फ्लू की लेनी पड़ती है. तो ये भी हो सकता है कि 1 डोज 2 डोज से काम नहीं चलेगा. हो सकता है सबको हर साल वैक्सीन लेनी पड़े, हमें नहीं पता. So Deepti, if I've taken, for example, suppose I've taken Covishield और तो मैं booster Covaxin का ले सकती हूँ. It has to be Covishield. It has to be Covishield. But if you have taken the Covishield, and you are fine, Covishield is very safe for you. Go ahead with that. Go ahead with that. क्योंकि बहुत ही कम लोगों में वो क्लॉट की प्रॉब्लम आ रही है. और बड़ी अच्छी बात यह है कि वो इंडियंस में या एथनिक माइनॉरिटी में जो यूके में जो देखा गया है, यहाँ पे या यूरोपियन कंट्री में, ये व्हाइट्स में थोड़ी कॉमन है. बिकॉज दे बिहेव अ लिटिल बिट, उनका ब्लड थोड़ा वैसे स्टिकी होता है. सो दे बिहेव अ लिटिल बिट डिफरेंट. So you can take, I would suggest you go for the Covishield. If you have taken Covishield, go for Covishield. We don't know, there could be chances कि थोड़े दिनों बाद कुछ नया डेटा आ जाए कि किसी ने किस लिया, उसके बाद लिया, उसके बाद वो बेटर हो गया. बिकॉज कुछ मैंने एक पेपर देखा है अभी रिसेंटली, एक जर्नल में आया कि उसने कहा कि 2 डिफरेंट ने कुछ बेटर किया, बट स्टिल इट इज नॉट वेरी वेल कंट्रोल्ड डेटा. सो अभी हम उस पर रिलाय नहीं कर सकते, बट मे बी इन अ फ्यूचर वी विल नो समथिंग डिफरेंट. Combination. Yeah, we don't know how it goes. Yeah. So overall, ma'am, COVID-19 vaccine is safe. Is it safe? Yeah, I would say COVID-19 vaccine safe, and it is the only tool we have against COVID. So far, we don't have anything else. डॉक्टर दीप्ति, आप ऐसा कुछ हमें ऐसा कुछ मंत्रा दे दें जिससे I can encourage lower. It says vaccination has always been an issue here top down in India among educated, uneducated, cultured, background, backward, any class. People have a lot of myth. नहीं हम नहीं लगवाएंगे. I have heard some weird sentences कि अरे क्यों unnecessary body में कुछ डालना. I am already fit. Somebody says that मुझे तो कुछ है ही नहीं, मुझे कोई symptom नहीं. Why should I vaccinate? So I had been beating my head last 6 months. Guys, please try to understand. With all kinds of people, educated या कुछ BPL वाले हैं सबसे. तो अभी आप मुझे ऐसा कोई मंत्रा दे दें जिससे मैं उनको, probably it could be a threat, लेकिन उनको बोल सकूं कि देखो भाई otherwise I'm going to start telling people कि देखो भैया तुम नहीं लगाओगे ना तो इंडिया में पुलिस पकड़ लेगी अब तुमको. नहीं तो ऐसा मत बोलना है. तो सबसे अच्छा एक बात करें कि उनसे बोलो कि दुनिया में जो सबसे मतलब इस टाइम करंटली जो बेचारी पॉपुलेशन है वो है डॉक्टर्स की क्योंकि वो कर रहे हैं ना उनके, पर उन्होंने कोविड लगा लिए, उन्होंने वैक्सीन लगा लिए. और खासकर आप उनको डेटा दे दें, यूके, यूएस और ऑल दिस जो कंट्री है ना, उन्होंने अपने ऊपर कर लिया, तो उनको कुछ नहीं हुआ, वो जिंदा खड़े हुए. सो लाइक आई हैव टेकन माय बोथ द वैक्सीनेशन है और मैं आराम से बैठी हुई, मुझे कुछ हुआ नहीं है मैं मरी नहीं हूँ ठीक है. आफ्टर दैट वी आर सीइंग द पेशेंट एंड वी आर मोर कॉन्फिडेंट. ओके. दूसरा जो डेटा है वो ये कह रहा है कि जो हॉस्पिटल एडमिशंस हो रहे हैं, जो हॉस्पिटल एडमिशन हो रहे हैं उसमें उनके ज्यादा हो रहे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लिया है. Like yesterday only I have seen the data from very small country, Bahrain. I was just checking the data of Bahrain admission क्योंकि वहां पास भी सेकेंड वेव आई है. सो उसमें जितने 4 पेशेंट कल मॉर्टेलिटी हुई है, उन्होंने पूरा बहुत अच्छा डेटा दिया है.
वो चारों को चारे वो थे जिनको वैक्सीन नहीं लगी थी। उनके पास 121 पेशेंट वेंटिलेटर पे, वो सारे के सारे वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। ओके, और उनके पास जितने केस पॉजिटिव आए हैं उसमें से 74% वो हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली थी। तो इसका मतलब वैक्सीन थोड़ा काम तो कर रही है। सो टेक द वैक्सीन। इसमें कोई चिप नहीं जाएगी, इससे फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं आएगा। खासकर एक मेल के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई, उनको लगता है अगर हमने वैक्सीन ले ली तो हमारे ना ये आदमियों का जो है ना इसमें गड़बड़ हो जाएगी, हमारे स्पर्म में गड़बड़ हो जाएगी। तो उनसे कहना उससे वैक्सीन से तो नहीं होगी, लेकिन ये जो वायरस है ना ये मेल्स को बहुत प्यार करता है। दिस वायरस लव मेल, यू नो, एंड इट हैज बीन प्रूवन, क्योंकि ये वायरस जो है ना वो सीमेन में मिला है। इट हैज नॉट बीन सीन इन द एग्स। हम लोगों ने जो एग कलेक्शन किया, वी हैव चेक्ड इट, अभी तक के कहीं नहीं मिला, बट इट हैज बीन सीन इन द स्पर्म. So best take vaccine, because COVID can affect your this thing male fertility, but vaccine will prevent it. So for the male this is the mantra कि तुमको अगर हो गया ना तो ये वहां पे रहेगा, so don't do it. Okay, vaccine can help you. Female, it's very important, because if you will get pregnant, or if you are not in the age of pregnant, like after 50 age you are menopause, then ये तुमको बहुत प्यार कर लेगा. So if you want to get safe, take vaccine. So in all the age group, this vaccine is the only one which can help you. So just mantra is that vaccine has proven कि वही लड़ सकता है. डॉक्टर ने ले लिया है, वो थोड़ा सेफ दिख रहे हैं. इजराइल इज द कंट्री जिसने अपना मास्क हटा दिया है बिकॉज ऑफ द वैक्सीन, बिकॉज इजराइल ने अपने आप को पूरे तरीके से वैक्सीनेट किया. सो इजराइल ने अपना मास्क हटा दिया है. द सेम यूएस इज ट्राइंग टू डू. It was very bad, the US, उसका रेट बहुत था, but the moment the vaccination is started, the things changed drastically. So take the vaccine, but again vaccine center पे जाके लाइन मत लगा लेना, 2 मीटर दूर रहना, नहीं तो वैक्सीन लेने जाएंगे और कोविड लेके आ जाएंगे. वो लेके वैक्सीन से नहीं आएंगे, वो लेके आएंगे क्योंकि जो सामने वाला खड़ा है ना उसको कोविड हुआ होगा. So don't take the vaccine. If you are having any fever, any sore throat, please don't take. Not only for yourself, for the other people. I know the cases जहाँ लोगों ने पैरासिटामोल खा के वैक्सीन ली है and they put the other on the risk. Don't do it. Please don't do it. If you have a symptom, your turn will come after 3 months for the vaccination. You are safe. पहले ही अपना निकाल ले, वैक्सीन जरूर ले. अगर तुम्हें कोविड हो गया है, अभी भी तुम्हारे पास इम्यूनिटी लॉन्ग लास्टिंग नहीं आई है, वी हैव सीन द केस जहां पे सेकंड जो नेक्स्ट टाइम जब इन्फेक्शन हुआ है वो बहुत गंदा हुआ है. इट इज वेरी बैड इफ यू गेट नेक्स्ट टाइम द कोविड इन्फेक्शन, बिकॉज इट्स वेरी बैड. सो डोंट थिंक कि तुमको उससे बच जाओगे. टेक द वैक्सीन, दैट इज द ओनली थिंग. एंड वैक्सीन विल नॉट prevent infection completely. That is very important to know. कि आपने वैक्सीन ले ली तो आप अमर नहीं हो गए. संजीवनी बूटी है ये अमरता का वरदान नहीं है. ये ठीक करेगी इन द सेंस कि ये इन्फेक्शन को कम करेगी. ये इट्स लाइक अ कवच, आई वुड से कि जो ये कोविड है ना, इट्स अ वॉर, इट इज नॉट अ बैटल, इट्स अ वॉर. तो ये वॉर हुआ है हमारे साथ. दिस वैक्सीन इज अ कवच. कवच आपका कैसा है ये हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कुछ हद तक बचाएगा. अब आप कवच पहन के बाहर डांस करने लगेंगे तो आप जाएंगे ही जाएंगे. तो आपको उसके बाद भी मास्क पहनना पड़ेगा, बट इट कैन हेल्प यू. अब बैटल अब तब होगा जब मेडिसिन आएगी. मेडिसिन कोई नहीं आई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, कोई भी बकवास कर ले, देयर इज नो मेडिसिन. देयर इज नो मेडिसिन सो फार. ऑल द मैनेजमेंट इज सिम्टोमेटिक. किस स्टेज पे पेशेंट है उस सिम्टम के हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है. देयर इज नो मेडिसिन अगेंस्ट कोविड. आई एम वेरी क्लियर अबाउट दैट. Thank you, Dr. Deepti. Your valuable thoughts and your enlightening presentation absolutely benefited all of us. Ma'am, ये जो सर्विस है ह्यूमैनिटी के लिए, वो आप एक होप सबके लिए है. और थैंक यू वेरी मच मैम. Coming back to Pooja, Pragya ma'am. Yes, thank you, Shubhra ji. A very well moderated session. Thank you, Shubhra ji and Pooja ji earlier for your moderation there.
And Deepti ji, आपसे तो मैं क्या कहूँ, you are actually front holding this entire webinar. You are informing, educating people, and we are always and always forever indebted to you for this kind of service that you are doing to the society community at large. Now, before we move forward, I would also like to speak a few words about our about our co-organizers and our primary organizers, because we must remember that this webinar, a very informative webinar, has been in fact organized. हमारे organizers जो हैं इस webinar के आज के, वो हैं उत्तर प्रदेश Development Foundation UPDF, and a special mention to our co-organizers. We're speaking here about Smart Gaon Development Foundation, who is our technical partner. We'd like to extend a big gratitude and note of thanks. Smart Gaon Development Foundation is a team that has been working from back end, handling all technical operations and taking care of this entire webinar that is going on. In fact, Smart Gaon Development Foundation के बारे में आपको बता दूं, ये एक it's a commonly known non-profit and private outreach platform जिन्हें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने भी काफी सराहाया है. उनका जो काम है जो रूरल एरियाज में है, जिस तरह से उन्होंने कोलैबोरेशन इनिशिएटिव्स लिया है फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन रूरल एरियाज, काफी सराहनीय है. उसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी स्प्रेड स्माइल फाउंडेशन लखनऊ, जो कि विमेन और बच्चों के लिए कार्यरत है. उनके क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं उनके बढ़ोतरी के लिए. उसके अलावा सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इज आल्सो वन ऑफ आवर co-organizer, and also Satya Micro Capital Limited, and the ladies wing of Small Industries and Manufacturers Association, SEMA. We'd like to express our thank you note and also extend gratitude for being here, for helping us put this webinar in a more seamless manner. So thank you to all our co-organizers and organizers. Now, moving forward, Dr. Deepti, हमारे audiences हैं. Our audiences are very active. They have been listening throughout to all the 3 sessions, and now it's the time for their questions. And we request Dr. Deepti to please, take our audience questions. So I'll start with the questions that are put here in our chat box. And so audiences, अब आपकी बारी है आपके questions की. आप लोग जरूर सुने, क्योंकि Dr. Deepti is going to exclusively answer those questions that have been put by you in our chat systems here. So, Doctor, talking about nutrition, and एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि पहली बात तो कोविड के दौरान न्यूट्रिशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. खान पान पे खासकर ध्यान देना चाहिए, ये डॉक्टर्स कहते हैं कोविड के दौरान. क्वेश्चन ये भी है कि क्या बीटरूट जूस स्पेसिफिकली अवॉइड करना होता है कोविड के दौरान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. आपको जो अच्छा लगे आप खा सकते हैं, क्योंकि आपके तो देयर इज वेरी हाई चांसेस कि आपको कोई स्वाद ही नहीं आना है. ठीक है, तो अगर आपको कोविड तो वैसे आपको स्वाद नहीं आना है, तो आपको जो अच्छा लगे आप खाएं. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. ओके, यस, हम ये कहते हैं हमेशा कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम, क्योंकि जीआई मोटिलिटी जो होती है, यानी कि जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वो थोड़ा स्लो काम करता है, तो हम इसलिए हमेशा डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा सा हल्का सा खाना खाएं, लाइक बहुत मिर्च मसाला न जाए, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी उस टाइम रिकवर कर रही होती है. क्या होता है ना, जब कोई इन्फेक्शन होता है या कोई बीमारी होती है, so body try to recover at that time, हम उसके साथ फाइट कर रही होती है. अब उस फाइट में आप उठा के उसको मिर्ची मसाला दे दे तो वो उससे भी उसको फाइट करना पड़ जाएगा. दैट्स व्हाई यूजुअली डॉक्टर सेड दैट कि हल्का सा खाएं. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोविड में भूख नहीं लगती है. ये बहुत कॉमन सिम्टम है कि भूख नहीं लगती. सो यू ट्राई टू ईट व्हाट यू लाइक. मैंने अभी नया सुना है कि पाइनएप्पल जूस पीना चाहिए. आई गॉट दैट इन्फॉर्मेशन, और उससे कोविड ठीक हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. पाइनएप्पल इज एन एलर्जन. अगर आपने जिंदगी में पहले नहीं खाया तो कोविड के टाइम पे मत खाया. पता चला आपको एलर्जी हो गई और आपको लेके हॉस्पिटल भागना पड़ रहा है. ठीक है, तो अगर आपने पहले कभी पाइनएप्पल नहीं खाया तो उसको खा मत ले, मतलब आपको पता नहीं है कि आपको उसको एलर्जी है कि नहीं है. ठीक है, बीटरूट ऐसा कुछ नहीं है. इट्स ओके, बिकॉज अगेन द बीटरूट हैज द प्रॉब्लम कि वो कुछ लोगों को थोड़ी सी एलर्जी करवाता है, थोड़ा सा सोर थ्रोट करवाता है. दैट्स व्हाई दैट कुड बी द रीजन कि आप डिफरेंशिएट ना कर पाए. बट इफ यू आर ओके विद दैट, लाइक द बॉइल्ड बीटरूट, दैट्स ओके. हियर इन द यूके वी ईट एवरीथिंग. जो अवेलेबल है खा लो, जो मिल जाए खा लो. तो और जिन लोगों को कोविड हुआ था उनके घर में जिसने जो डोनेट कर दिया खा लो. इट्स लाइक दैट. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. व्हाटएवर यू लाइक. यू मे नॉट लाइक एनीथिंग, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज आपको कुछ स्वाद ही नहीं आना है.
That's right. The sense of taste and smell vanishes then, Yes, and that's a big indicator. As per Dr. Deepti, उन्होंने कहा था कि be rest assured, अगर आपका sense of taste and smell जा चुका है, you are indeed COVID positive. टेस्ट की So भी जरूरत नहीं है अब तो. that's right. Also going forward, Dr. Deepti, बहुत सारी queries इस तरह की आ रही हैं कि अगर किसी को कोई existing illness है, फॉर एग्जाम्पल पीपल आर आस्किंग कि एस्थमा पेशेंट्स क्या कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं, कैंसर पेशेंट्स कोविड वैक्सीनेशन करा सकते हैं. सो राइट फ्रॉम दोज पेशेंट्स जिनको किसी तरह की क्रिटिकल बीमारी है से लेकर के ऐसी नॉर्मल बीमारियों में भी क्या प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस में भी कोविड वैक्सीन लगाई जा सकती है? Exactly, that's very important, and they are the vulnerable group. So in European country, or I will say that like where I am working, they were the high risk group, and the government has offered the vaccination first to them because we need to protect them. Okay, because अगर उन्हें कोविड होगा तो वो बहुत गंदा होगा. It can be very serious. So that's why this group should get vaccinated if they want, because they are high risk. उनको अगर कोविड रहता है, their chances of deteriorating is more fast. So they should take vaccination to prevent themselves. There is no contraindicated, except the only contraindication for the vaccine is if you are allergen. If you are allergen to whatever constitute, जो वैक्सीन का जो constitute है वो आपको पूछेंगे जब आप जाएंगे वैक्सीन के लिए, तो आपको पूछेंगे आपको इनमें से किसी चीज से एलर्जी है क्या. If you are allergic to that, then only the vaccine won't be allowed. Otherwise, it is safe to take it. So even these patients they should keep monitoring, and in fact doctor advice भी अगर ले लें ये लोग अपने consultants की advice, people with such illnesses before taking vaccination. Okay. Yeah, so they Doctor, moving. Yeah. हाँ. नहीं So doctor, please. मेरा ये कहना है कि ये जो ग्रुप है ये हाई रिस्क ग्रुप है, इसको प्रोटेक्ट करना थोड़ा जरूरी है. सो इफ दे आर गेटिंग द ऑफर ऑफ गेटिंग वैक्सीनेशन, दे कैन गो अहेड विद द वैक्सीनेशन, एंड दे शुड जस्ट गो फॉर द एलर्जिन जो क्योंकि हर वैक्सीन जो होती है वो किसी देयर इज अ कॉम्बिनेशन, सो कुछ बहुत सारी चीजें मिला के बना होता है, जैसे दवाइयां बनी होती. तो दे विल आस्क यू वेदर यू आर एलर्जिक विद ऑल ऑफ दिस थिंग, और इस किसी को रीनल फंक्शन टेस्ट ठीक नहीं है, यानी किडनी की कोई ऐसी बीमारी है कि बहुत ज्यादा है, in that situation they may not offer, because that time there are certain, otherwise it is better to take it. If you are okay, you have a condition like diabetes, cancer you mentioned to me, and you are working, you had your chemotherapy already, so just go with the vaccine. It's more important. Doctor, the next question is also related to pregnancy as in pregnancy में वैसे भी बहुत सारे symptoms initial के few months में आते ही हैं जहाँ पे there is vomiting, there is nausea and these symptoms. So COVID के अगर कि कोई किसी pregnant woman को COVID संक्रमण हो गया है तो क्या इन symptoms में कोई change होगा या कुछ इस तरह के differences मिलेंगे? नहीं, इन सिम्टम में तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कोविड के सिम्टम में चेंज होगा. दे कैन मेक देम अ बिट सिक. That's right. मतलब because there are two things are now going on. Like in the first trimester, she may feel already nauseating. Now the COVID comes, so she can become sick very soon because वो already dehydrated है. So try to take in that situation जो pregnancy safe anti sickness medicine है जो आपकी डॉक्टर्स आपको एडवाइस करती हैं, you take that so that you can keep yourself well hydrated, because this time already you are sick and now this thing has again come up which can give you fever, which can lead to again dehydration, so it's a vicious cycle chalna shuru ho jayegi. So take the anti sickness medication after consulting with your doctor, and keep yourself well hydrated. Try to minimize this symptom so that you can fight with the COVID symptoms. Also, doctor, during pregnancy, वैसे ही लोगों में घबराहट रहती है. When they discover that they are pregnant, there is happiness. लेकिन एक तरह की घबराहट भी होती है talking about D-Day कि जब वो final day आएगा
या इवन ड्यूरिंग हमारी प्रेगनेंसी के सब अच्छा होगा नहीं होगा, तो एक नेचुरल सी घबराहट आती है। ऐसे में कई बार अब तो क्योंकि कोविड सिचुएशन है तो उतना डॉक्टर के पास आना जाना भी उतनी तरह से नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हमारे एक ऑडियंस का क्वेश्चन है कि हम कैसे खुद की काउंसलिंग कर सकते हैं जिससे यू कैन सेल्फ मोटिवेट योरसेल्फ, stay positive. So doctor, उस पे आप कुछ words बोलिए, because the psychological motivation is very important here. Completely agree. The mental health has been affected a lot during this COVID, a lot. I don't know हम कैसे recover करेंगे, we all. So one thing is you can do that, you can take, first of all, I started this webinar that don't get panic. Keep it in the mind. The chances of recovery is higher than, much higher than chances of getting sick. बहुत ज्यादा। तो पहली बात तो अपने आप को ये बात करना है। दूसरी बात, if you like some books, good books, read the books, अपने मर्जी की चीजें देखें जो भी आपको entertain करता है। Keep talking to your friends, read the positive stories, पॉजिटिव चीजें। ये सोशल मीडिया को बंद कर दें प्लीज, क्योंकि उसमें जो है ना फालतू चीजें ज्यादा दिखेंगी, अच्छी चीजें कम दिखेंगी। सो ट्राई टू कम्युनिकेट विद द पीपल, लाइक जो लोगों ने रिकवरी की है, जिनकी कोविड से रिकवरी हुई, उनसे बात करने की कोशिश करें। यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम द टेली कंसल्टेशन नाउ डेज, लाइक बहुत सारे टेली कंसल्टेशन चल रहे हैं। एंड खासकर जो डॉक्टर्स आउटसाइड द इंडिया हैं, from any country, they are trying to help, they are trying to do a lot. हम लोग जो है काफी teleconsultations we are doing, so try to contact them, that so that we are trying to help you कि हाँ घबराएं नहीं। So this is the most important, try to talk each other. अगर आप घर में सोशल डिस्टेंसिंग पे भी हैं, आप अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर रहे हैं, तो भी आप एक दूसरे से वीडियो कॉल करके बात कर सकते हैं। आप एक दूसरे से बात करते रहें। यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इनसाइड। अगर आप अंदर पॉजिटिव होंगे तो इस पॉजिटिव जो स्ट्रेंज बग आया है, इसको आप भगा सकते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि बी पॉजिटिव। Right. They are to help Thank you. That. All the doctors are there to help you. Yes, yes. So खुद की काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल मोटिवेशन खुद को करना, ये क्वेश्चन हमारा प्रिया रानी जी की तरफ से आया था। डॉक्टर प्रिया रानी, who joined us from Patna, in fact, had put this question across, and which I think has been very well answered by Dr. Deepti here. So moving forward, और questions भी हैं डॉक्टर कि आरव सिंह जी का क्वेश्चन है कि क्या आप कुछ एडवाइस करेंगे कोई मेडिसिन जो एक्सट्रीम नॉजिया फीलिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को थोड़ा इट कैन कीप इट एट बे? सो कौन सी, पहली बात है कि कौन सा ट्राइमेस्टर आई एम एक्सपेक्टिंग, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होगा। सो आप, देयर आर नॉट मच मेडिकेशन कैन बी एडवाइज, एंड अगेन आई एम टेलिंग डोंट डू द सेल्फ मेडिकेशन. Okay, so what your doctor is advising, go with that. I can give you the name, but it won't be ethically correct to give the name like that on a this webinar, because it's prescription based. Everything should be prescription based. It should be ये सब कुछ well documented होना चाहिए कि आपने क्या लिया. So I am happy to write it, but I would encourage if you can contact your doctor so that it can provide your prescription proper. So that you can get, if you are not getting hold of your call, आपको डॉक्टर से बात नहीं हो पा रही है, you can WhatsApp me and I can write it to you so that you can get. I won't like, I don't feel it right to give the name of any medication on any Zoom platform. I'm sorry for that. Oh, okay. So it can be a one-to-one consultation, maybe on WhatsApp, and it should be after proper history. Yeah. That's right. Okay. So Arav ji, I think your question is answered. Also, he has another query about कि कभी-कभी normal delivery में vacuum जो instrument है उससे delivery की जाती है. So is it harmful for the child in any way? No, it's very safe and it's very routine here. It is one of the way to increase the vaginal deliveries. It is one of the way to increase the vaginal delivery. And I think in India, where the cesarean section rates is so high, I always encourage to use this as one of the way to reduce the incidence of cesarean section. ये एक तरीका होता है. Sometimes you may see anything has some complication, but they are rare. They are less. So we have to risk and balance. क्योंकि वैक्यूम आप तब लगाते हैं जब बच्चे का सर काफी नीचे आ जाता है, तब लगाते हैं. अगर उस टाइम पे सिजेरियन करें तो सिजेरियन थोड़ा रिस्की हो सकता है कंपेयर टू वैक्यूम. अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को ये सेफ लगता है कि वैक्यूम से या फिर फॉर्सेप, जिसको कि इंडिया में चिमटा कहते हैं, अगर उसके थ्रू वो बच्चे को निकाल सकती है,
So I would say that that is much better than doing the cesarean at that point, if she feels safe for that. If she is giving you this option, because वो option आपको तभी देगी जब उसे लगेगा कि वो इसे कर सकती है और वो थोड़ा safe है, तो अगर वो आपको ये option दी जाती है, then I would say that go ahead with that. That is much safer currently. We encourage and we do it daily. You know, we do it daily. हमारे लिए रोज का काम है. Right. Okay. So it's not something that is new or the doctors are not aware of. ये vacuum use होता है and it has been a practice, and there are well-trained doctors who are in fact able to do such a delivery or a forceps delivery as well. Okay. Moving forward, doctor, we have a question from Dr. Sindhu Mishra, who's from SEMA, and she has put an important question, I believe, that is there any cure for uterine fibroids for women who are in the 45 plus age group? Also, is it safe to get hysterectomy done during COVID? I would advise the first, let me ask the first part of the question. Okay, so the management of fibroid, तो fibroid को management, it depends on the symptom. Again, अगर वो सिर्फ छोटा सा पड़ा हुआ है, छोटा सा है, there is no need to do anything, because after menopause वो अपने आप चला जाएगा. It won't do anything, कुछ भी नहीं करने वाला. If it is causing trouble, like pressure symptom, कोई बहुत बड़ा है उसके कारण आपको pressure symptom आ रहे हैं, या छोटा होने के बाद भी आपको बहुत heavy bleeding हो रही है, then we can go step by step, starting from the medical management, then going for the surgery. You know, पहले सिर्फ medical management से देख लें कि कुछ दवाइयाँ गोलियां देके भी वो ठीक हो सकता है. तो बेसिकली फाइब्रॉइड का जो मैनेजमेंट है वो ये डिपेंड करता है कि उसका साइज क्या है, वो कहाँ पर है और उससे सिम्टम क्या हो रहे हैं. सिर्फ फाइब्रॉइड होने से हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज अगर 3 औरतें एक कमरे में बैठी हुई तो उसमें से एक को फाइब्रॉइड हो गई होगा. तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 1/3 पॉपुलेशन को हिस्टेक्टोमी कर दें. इसका मतलब ये नहीं. इसका मतलब ये है कि हमें ये देखना है कि वो सिम्टम कितना का. इट्स वेरी कॉमन थिंग, यू नो. वी सी इट्स ऑलमोस्ट नहीं, वी सी इट डेली. आई विल से हम हर वक्त देखते रहते हैं, बट हम हर किसी को इसको हिस्टेक्टोमी एडवाइज नहीं करते हैं, क्योंकि हिस्टेक्टोमी इज अ वेरी बिग ऑपरेशन. इट्स अ वेरी बिग ऑपरेशन. इट्स बेसिकली वी आर टेकिंग योर वुम्ब आउट. सो वुम्ब आउट का मतलब ये हो रहा है कि हम आपके अंदर से आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन बाहर निकाल रहे हैं. सो इट्स अ वेरी बिग ऑपरेशन. इट टेक्स अ रिकवरी टाइम इज वेरी लॉन्ग फॉर दिस थिंग. सो इस केस में अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ड्यूरिंग कोविड टाइम वेदर इट इज एडवाइजेबल, आई वुड से एनी इलेक्टिव थिंग, एनी इलेक्टिव ऑपरेशन avoid if you can avoid during this time, because it's a intervention. If it is really bothering you, आपको बहुत ज्यादा bleeding हो रही है which is not managed by the medicines, then you can go for it. But if it is manageable by the medicine, I would advise you to wait unless the things can get sorted. तब उसके बाद इसका ऑपरेशन करवाएं. Don't do any elective thing, because first of all it is not safe. Second, it will increase the pressure on the healthcare system. Where there is already oxygen shortage. बहुत सारी चीजें हैं जिसपे अगर अलग से आपकी केयर लग जाएगी. If it is a not causing you much harm, don't do it. Avoid it at current time. That's right. So avoid as far as you can if it's not an emergency, medical emergency. Yeah. That's what doctor wants to say. All right. So I think we've answered more or less of our audience questions, and one of our audiences had also asked for a specific medication for vomiting and nausea during pregnancy. For that, I request our audience to get in touch with our organizers, and they will help you with the contact number, WhatsApp number of Dr. Deepti, and you can take it forward from there with Dr. Deepti. So I believe we are coming towards the end of this very informative webinar. हमारा ये webinar आज का अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है, और हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने ऑडियंसेस फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया के अलग अलग देशों से लोगों ने हमें ज्वाइन किया हमारे प्लेटफॉर्म पर. और हम आशा करते हैं कि आज आपने कुछ नया ही सीखा होगा, और अपने जो आपसे संबंधित लोग हैं जो आज इस प्लेटफॉर्म पे यदि नहीं किसी वजह से जुड़ पाए, आप उन तक भी ये सारा इंफॉर्मेशन, ये सारी बात पहुंचाएंगे, ताकि एज अ सोसाइटी, एज अ कंट्री, एज अ कम्युनिटी वी कैन बेनिफिट एट लार्ज. And I would especially like to thank Dr. Deepti for her precious time that she has spared for all of us. Now, for a formal vote of thanks,
for this event on a very special day that it has been held, that a Mother's Day, being today Mother's Day, एक बहुत अच्छी ये पहल हुई है इस वेबिनार के थ्रू कि उन माओं को, उन औरतों को, वो माएँ स्पेशली जो अब माँ या बनने वाली हैं, जो माँ बन चुकी हैं, तो आज का दिन काफी symbolic है, Mother's Day, and that's why we have also seen that it is coinciding very well with the webinar and Mother's Day together. And so I would now like to invite Dr. Sindhu Mishra for delivering the vote of thanks. She is from SEMA, and she will now, in fact, deliver the vote of thanks. Dr. Sindhu Mishra. Yeah, good afternoon, everyone. And wonderful session, I must say. First of all, my greetings for Mother's Day, and especially the day a child is into our system, the day a mother is born. And this was such an informative session. Dr. Deepti has done justice to the role given to her, and frankly speaking, initially when I got to know about this session yesterday, I could not circulate the information to much of the people. And being Sunday also, I was like, I will join for some time and then I would probably leave. But the session was so captivating and so well moderated by Ms. Pooja, Ms. Pragya, and Ms. Shubha that I could not leave the session even there was internet problem. But again, I took help from a hotspot and again got connected. I must say, a wonderful session. Thank you so much, Dr. Deepti, for elaborating each and every point so well, especially covering up the mental health, because this is one of the area which I'm working in. I'm a psychologist basically, and you have given a wonderful advice on how to cope up with the situation, because self-care is very, very important. And if we keep calm and collected, especially during pregnancy, and otherwise also things could be manageable. So my heartfelt thanks to Dr. Deepti, and thank you so much. The moderators also very well moderated. All the questions could be taken up, and even I got my question answered so well, because I was little confused. It was troubling me, but I was not able to decide. I was in fix. So thanks for guiding me personally, and thanks to everyone joining us, because we believe that the women only can rise by uplifting others. So such an uplifting session organized by Smart Gaon and the team. Thank you so much to everyone out here. Thank you. Thank you, Dr. Sindhuja Mishra. Those were very encouraging words from you, Dr. Sindhuja Mishra, from the Women's Wing of Small Industries and Manufacturers Association, SEMA. And as she rightly said, and as I firmly believe, we say that if a woman is educated, the entire family is educated, and this holds true now, even in this condition, that if a woman is safe, if she takes care of herself, if she is healthy, the entire family is protected. And so ये नारी की यही बात है कि अगर वो खुद सेफ है, वो खुद प्रोटेक्टेड है, तो पूरा का पूरा संसार, पूरा फैमिली, पूरे परिवार को प्रोटेक्शन ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है. So now on these words, I would like to thank all our guests, in fact, our panelists, most importantly, Dr. Deepti, for having spared her precious, valuable time for enlightening us, हम सबको एक नई जानकारी से अवगत कराने के लिए. उसके अलावा मैं स्पेशल नोट ऑफ थैंक्स एक्सटेंड करना चाहूंगी मेरे को मॉडरेटर्स को, पूजा जैन, मिसेस पूजा जैन एंड मिसेस शुभ्रा सिंह. Thank you so much for being here, for coordinating so well. And Dr. Sindhuja Mishra, of course, I have thanked you for your very enlightening vote of thanks here. And last but not the least, all our audiences who have been here, have been constantly supporting with their questions throughout. And I'm sure that this experience has enlightened you, has helped you. और एक special thanks हमारे organizer, Uttar Pradesh Development Foundation, our co-organizers, that is Small Industries and Manufacturer Association, Smart Gaon Development Foundation, Satya Micro Capital Limited, Spread Smile Lucknow, and Saraswati Group of Colleges.
Thank you all. Have a good day. Stay safe. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you.